Uh, in the initial stage, we have made a lot of. There were a lot of applications relating to that Section 9 before the Information Commission here. Even the people started making application to the Central Board of Certification, which issues certificate to the films are concerned here. जो film है ना, initially some RTA applicants made application to the Central Board of Certification, that is Censor Board, and sought the information, the copies of the films unedited by the original footage of the film submitted to them for the certification and all here. Initially, when it was in somewhere in 2006-7, the lot of applications were made to the Censor Board here. So basing on the Section 9, they invoked the provision under Section 9 and rejected the application, stating that it comes under the provisions of Section 9 of the Act, and where the section very clearly says, without prejudice to the provision of Section 8, a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, may reject a request for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the state. That means if they provide the footage of the entire film, it will infringe the right of the producer, or the distributor and all here. So PIOs took a stand that information relating to the footage of the films submitted for getting the censor certificate were rejected by the Public Information Officer of the Censor Board here. And it was challenged before some of the Central Information Commission. I think that 1 or 2 cases were there here. Even the Central Information Commission also upheld the orders of the Public Information Officer. So now it is a rule that we cannot seek the information relating to the films, copies of the films submitted to the Censor Board here. That is one thing is here. The second question came before the Information Commission or here. This one, libraries are purchasing the books from the authors here. Even in the books, it will be clearly written that the publisher or the author reserves the right, copyright here. It will be clearly mentioned in the book here. So even the libraries also, they rejected the certified copies of the books held by them here. Libraries, public libraries, or the public authorities. So books are the documents, whether it can be given or not. Even the Information Commission said that even the copies of the books held in the libraries cannot be provided under the RTA Act here. The third one is the medicines, the patents, the medicines that they have to get the permission from the drug controller by the respective states. They have to obtain permission from the controller of drugs of the respective states for manufacturing and selling of these medicines or consent here. So at the time of making application, they are supposed to give the formula used for that manufacturing of that particular medicine. So they will be having the formula. Whether such formula can be accessed under the RTA Act, this is a question here. Many applications were made and it was rightly rejected by the PAOs that invoking the provision 9 of the Act here. So the issue is very clear here that wherever the patent law or the copyright law is applicable on that particular document or the information held by the public authority, so citizen cannot have access to such informations here. And now the recently and here, we are making a lot of applications to the public works departments wherever that big projects are going on, especially flyovers, then bridges will be there here. Huge buildings are there here. Whether the information, the plan of such buildings or such project, that flyovers or bridges or the buildings, big projects can be accessed under the RTA Act here. The information, the PIOs normally they took a stand that even the plans, that is the technical plans submitted by the contractors or by the owners of the buildings for
that particular building or the particular bridges is accessible under the RT Act is a question here. Some of the public information officers, they sought the opinion that under section 11, they sought the opinion of the contractors who have submitted those plans, and here they have rejected some of the information citing under section 9 of the Act here. But the Karnataka information held that whenever a bridge or a flyover is being built by the contractors and the plans, the technical drawings supplied by such contractors to the government for building that particular bridge or a flyover is a public document, and it has to be given to the public here. Even similarly, applications were made to the Bangalore Metro seeking the technical drawings of the railway line, the metro railway line. Earlier it was rejected, but finally on the intervention of the Karnataka Information Commission, even such informations are now accessible to the public here. So if the plans submitted by the architects for building, even for the private buildings, with the municipal authorities, they are the municipal authorities or the competent authority for sanction of building plans for these apartments and all here. Whether such plans are accessible under the RT Act, whether the section 9 can be made, is applicable to withhold the information was a question here. But now the rule is very clear. Whoever submits any plan for building of the houses, sanctioned to secure the sanctioned plan from the municipal authorities, either for apartments or any construction is concerned here. So they are all public documents, and there this applicability of the copyright or patent does not hold good here. These are the important aspects of section 9 here. So only thing is the law is very clear that the books held by the public libraries or not the public documents, and the authors will have the right to have the copyright here. It amounts to the infringement of the copyright. So such information cannot be accessed under the RTI Act here. Even likewise the medicines, but here in medicines, that formula that will be whatever the submit to the controller of drugs will have a limited period. I think it is about 5 years or 10 years here. Once that period is over, that document becomes a public document, and anybody can access to the formula of that particular medicine here, even under the RT Act here. So I think the area is very limited, and hardly a few cases have come up before the Karnataka Information Commission regarding the section 9 is concerned here. So I think there is no much gray area and there is no much confusion in these things here. I think this is my opinion, and what we have made studies or what analyzing the Information Commission orders and here. And these are the highlights and of the importance of the section 9 under RT Act. So thank you, Shivanand-ji. सर आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके। हाँ ठीक है, धन्यवाद बीरेश जी को, धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी आप सभी को, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यदि किसी दवाई से संबंधित फार्मूला यदि आप मांग रहे हैं या किसी बिल्डिंग के जो प्लान है वो यदि आप चाह रहे हैं इस तरह से, तो ये चीजें कॉपीराइट इशू के तहत संरक्षित होती हैं और वो नहीं दी जाती हैं। एक सर्टेन टाइम के बाद में फिर वो दी जाती है, जैसे आपने बताया कि जिस तरह से 8-10 साल का उसका पीरियड होता है दवा से संबंधित। पब्लिक लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों के विषय में भी उन्होंने आपको जानकारी दी कि किस तरह से कॉपीराइट्स के तहत का एक लिमिटेड वो रहता है। और इस विषय पे और भी अपन चर्चा करेंगे। आप लोग प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं अपना हैंड रेज करते हुए। हमारे बीच में आत्मदीप सर भी जुड़ चुके हैं। आत्मदीप सर, स्वागत है। और यदि आप कंफर्टेबल पोजीशन में हैं तो फिर इस विषय पर आपके जो अपने अनुभव रहे हैं, आप एक सूचना आयुक्त के तौर पर आपने काम किया है, तो जाहिर है कि इस तरह के जो इश्यूज हैं प्रैक्टिकली आपने काफ़ी डील किए हुए हैं।
तो जब आरटीआई में ये बात आती थी कि सेक्शन 9 का कहाँ वायलेशन हो रहा है, कैसे जानकारी आवेदक को उपलब्ध करवाई जानी है, अपीलार्थी को, अथवा नहीं उपलब्ध करवाई जानी है, उस स्थिति में आप एज ए सूचना आयुक्त के तौर पर किस प्रकार इसका निराकरण आप करते थे, निर्धारण आप करते थे? और कुछ यदि आपके कार्यकाल के दौरान यदि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय आए हुए हैं जिसमें इन इश्यूज को लेकर के चर्चा हुई और आपने उसमें कुछ डिसीजन दिए, तो कृपया उसके विषय में भी अवगत कराएं। आप मुझे सर सुन पा रहे हैं? अपने आप को आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हालांकि हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। सर आज नमस्कार। का विषय बहुत अच्छा है। हम 5-7 मिनट बाद आपको ज्वाइन करते हैं। मैं जी, वीडियो तब ऑन तक कर देंगे बिल्कुल, बस तब 5-7 तक मिनट। हाँ जी। ओके। तो जब तक 5-7 मिनट 10 मिनट आप लोग सब तैयारी करते हैं, ज्वाइन करने के लिए अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी हमारे उत्तराखंड से आरटीआई रिसोर्स पर्सन, और इस कार्यक्रम में हमेशा ही अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले। तो वीरेंद्र जी को ने भी हैंड रेज भी किया हुआ है, हम उनको यहाँ पे इनवाइट करेंगे। वो इस विषय पर अपने जो भी बातें हैं वो यहाँ पर रखें। उनका भी एक अच्छा खासा अनुभव रहा है, काफी समय तक उन्होंने काम किया है आरटीआई रिसोर्स पर्सन के तौर पे, बहुत सारे मामले ऐसे डील किए हुए हैं। तो उनके भी मतलब जब उन्होंने काम किया तो उनके समय में भी ये बहुत सारी ऐसी चीजें आई होंगी जिसके विषय में उनके अपने अनुभव होंगे, महत्वपूर्ण कुछ निर्णय रहे होंगे। तो उनके पास तो विशेष तौर पर निर्णयों का एक अपना भंडार रहता है हर तरह से, तो उस पर भी वो अपना प्रकाश डालेंगे। तो बीरेन जी स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद शिवानंद जी। जी। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेक्शन 9 जो है, और इसमें मेरे कार्यकाल में तो मैंने जो 700 केसेस देखे उसमें कोई ऐसा सेक्शन 9 मुझे इन्वोक कहीं करना नहीं पड़ा। लेकिन एक मेरे 2 क्वेश्चन है वीरेश बिल्लूर साहब से। सो मे आई आस्क दोस क्वेश्चंस? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं वीरेश जी। Sir, I have 2 questions, 2 points to make regarding this Yes. discussion about section 9. Yeah. Actually, I am a criminal lawyer also and RTI resource person of Uttarakhand Information Commission. Yes. At present, I am teaching as assistant professor in computer science and engineering in GB Pant Institute of Engineering and Technology. Yeah. I am also teaching this cyber law and ethics, which also includes intellectual property rights. As far as section 8(1)(d) and section 9 are concerned, so section Yes. 9 mentions only about copyrights, Yes. while section 8(1)(d) includes all types of intellectual property rights. So I think there is Yes. some overlap. Yeah. Because one case that you narrated about section 9, so I think patent does not come under section 9, but rather it should come under 8(1)(d). Secondly, another important point is copyright subsisting in a state is not protected. That means only the copyrights of private persons are protected under section 9. If the copyright is with the government, then the government can only charge the price of the publications, and the copyrights of the government authorities or public authorities are not protected under the RTI Act. So I think Yes. these are 2 important points, that is 8(1)(d) and copyright subsisting in a state. So Yes, what are your yes. comments on this, sir? That section 9, it is very clear. It says that if you read the section 9, it clearly says that the request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the states here. Yes, It sir. says. Yes, sir. That's the section 9 is very clear here. Government cannot claim the copyright here. Whatever the information they are having, they have to give it to the government. All government publications that they are the public documents here according to this section. So if you read the section 9 itself very clearly says that the information held by the information related वीरेश जी का कुछ नेटवर्क का इश्यू लग रहा है। we cannot make any much interpretation. There is no much confusion among the section 8(1)(d) and section 9 is concerned. But patent, I think, would cover 8(1)(d) rather than section 9. Yes. That is 8(1)(d) is very exhaustive. Yes. Yes. One is, I think medicines, patents of medicines come under 8(1)(d). 9 is concerned. Yes, sir. Yes, you sir. are very, you are correct. Yes. Yes. Thank you.
तो जिस प्रकार से आपने देखा कि इस प्रश्न में बीरेन जी ने जो बातें पूछी बीरेश सर से, उन्होंने सेक्शन 9 के तहत दवाइयों के विषय में जानकारी जो फार्मूले हैं उसको उन्होंने बताया था, लेकिन वो बता रहे हैं कि 81D के तहत ये कवर होता है, पेटेंट के इश्यूज हैं, सेक्शन 9 के तहत नहीं कवर होता है। तो इसी तरह से आप लोगों के और भी जो प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग अपने प्रश्न हिंदी में पूछ सकते हैं, वो आपके प्रश्न का जवाब देंगे और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत थोड़ा सा ये है कि बीरेश जी का थोड़ा सा हिंदी उतना फ्लुएंट नहीं है, क्योंकि वो कर्नाटक से हैं, उतना ज्यादा वो नहीं रहता है साउथ में। तो आप लोग अपनी बात फिर भी पूछ सकते हैं, वो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। गोरडे जी हैं, गोरडे जी तब तक आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मुझे पूछना था। सर बोले कि लाइब्रेरी का जो बुक्स वगैरह है, ओके, वो कॉपी के अंदर नहीं, मतलब वो है, हाँ, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। लेकिन जब बच्चे पढ़ते हैं तो राइट टू इंस्पेक्शन ऐसा ही हो गया है ना। तो मेरा सवाल है कि मतलब जब यदि बच्चे लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं, Yes. गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने परचेस किया है, लाइब्रेरी में वो पढ़ रहे हैं, Yes. तो ये अलाउड है कि नहीं लीगली? सेकंडली, कुछ लाइब्रेरी में जेरॉक्स कॉपी दी जाती है कुछ पेजेस की, तो देना लीगल है No, कि no, नहीं no. है? It's wrong here. They are not supposed to keep the copyright says the act very clearly says here. Even it cannot be copied in any manner here. Even that act is very stringent. Even you cannot take the copy it even in handwriting as it is here. But practically it is not possible. If you borrow a book from the library here, if you take it home and take a Xerox or make a you can scan the certain pages and keep it with you. Even though it's an infringement, that prosecution or implementation cannot be done here. Practically, it is not possible. But only this law restricts only the public authorities from providing the either the Xerox copies or scanned copy of that book here. The implementation is very, very difficult. This under section 9 is copyright. Sir, but there is concept of fair use in Copyright Act. I would like to intervene here. Yeah. Actually, there are two use. One is fair use, another is commercial use. Yeah, yes. So when somebody uses it for a study or research purpose, then that is not considered as infringement because it is comes under exemption of fair use under Copyright Act. Okay. And if it is done for commercial benefit, then only it comes as commercial use and infringement. So there is protection for this fair use as far as, because there are even reprographic services in libraries, and if somebody is just copying, say, doing it only for study or research, then generally that comes under exemption, and therefore there is no legal action in such cases. Thank you, sir. Okay. Even in research, you can copy it and you can quote it, but you have to get you have to credit, quote origin. That is the original author. You have to acknowledge him. In the, even in your thesis. Otherwise, it amounts to plagiarism. Yes, Sahitya Chori mein na hai. So the original sources have to be quoted and citation has to be given. Yes, that is correct, sir. Yes, and another thing is we are glaring is the piracy of these films and all here. Yes. That piracy is also there. It's a violation of Copyright Act here, but hardly they are being prosecuted. And it is very gray area. The implementation is highly impossible now here. But only thing is, public authorities are not supposed to violate these laws. That is the main intention of Section 81D and Section 9 is concerned here. But Yes, sir, I want to say that when public authority has purchased the books, they have paid the amount, and when it is for the public to have access, at that time, if public wants 1 or 2 pages for a reference purpose or court issues, they either need to take permission of the author. Yes. That is what's said here. You cannot use it for the commercial purposes. Yes, correct. And you cannot use it for otherwise you can use it for any other purpose other than for the commercial purposes. And suppose if you want to use that particular paragraph or the particular thing in the verbatim as it is, then you have to acknowledge the original authors. That is the thing here. That is the thing. Okay, thank you. ये आप लोगों के और भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी जो हमारे साथी यहाँ पर Shivanand ji, I am not a legal expert on this issue here,
नहीं but नहीं only I can फिर speak भी only about the applicability of simply- 40 Act under these. हाँ, simply sections. whatever the experience you have and the knowledge that you can give, and here I think people are not so much concerned about Yeah. too much legality, only some sort of like Yes, yes. surface information and that they don't actually have. So मैं यहाँ पे लोगों को यहाँ पे आमंत्रित करूंगा कि आप लोग अपनी बात पूछ सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर आपने देखी है कि किस तरह से वीरेश जी ने और वीरेंद्र जी की चर्चा में ये बात सामने आई है कि सामान्य तौर पर यदि हम किताब की कोई लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी से फोटो कॉपी मांगते हैं, हम ये कहते हैं RTI लगाते हैं कि हमें इस पुस्तक की आप प्रमाणित प्रति दीजिए, तो वो नहीं दे सकते क्योंकि वो कॉपीराइट इशू के अंतर्गत आता है। लेकिन सामान्य तौर पर मतलब यदि हम एज ए स्टूडेंट या रिसर्च के तौर पे यदि हम लोग उपयोग करते हैं कोई किताब, कहीं से कोई चीज उठाते हैं, कोई आर्टिकल का कोई पार्ट उठाते हैं, तो उसमें हमें साइटेशन देना आवश्यक होता है कि हमने ये चीज यहाँ से उठाई है, फला पुस्तक के फला पेज क्रमांक के फला नंबर से ये हमने यहाँ से ले रहे हैं। तो उससे वो उनका वो वायलेशन नहीं होता है, वो प्लेगियरिज्म के तहत नहीं होता है। वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है। और दूसरी बात ये भी चीज सामने आई है, अक्सर होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि फोटो कॉपी की दुकान पे जा करके ये बोलते हैं कि फलाना किताब का हमें एक आप कॉपी दे दो। तो वो किताब आती है, फॉरेन से आती है, पता चला कोई इंटरनेशनल एडिशन है और वो आ रही है 10,000 रुपए की, है ना, या यूं कहें कि 100 यूरो की आ रही है। तो 100 यूरो की किताब या 125 यूरो की किताब यदि हम खरीदने जाएंगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो अक्सर ये होता है, हमारी लोगों की पढ़ाई के कार्यकाल में होता है, हम लोग भी खूब किए हैं, सभी लोग करते हैं कि मतलब उस किताब का एक पार्ट हम मतलब या पूरी किताब ही फोटो कॉपी करवा करवा के महत्वपूर्ण किताबों को अपने लाइब्रेरी में हम रख लेते हैं। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब कॉमर्शियल यूज नहीं होना चाहिए। कॉमर्शियल यूज आप इसे मतलब बना करके आप इसको बेच रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं, वो गलत है। लेकिन एकेडमिक पर्पज के लिए एक लिमिटेड मतलब उस पोर्शन को आप उपयोग कर सकते हैं। ये भी होता है कि मतलब यदि आप एकेडमिक यूज के लिए कर रहे हैं और फिर उसका आप साइटेशन देते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं कि हमने यहाँ से ये चीज उठाई हुई है, तो वो कुछ हद तक जस्टिफाइड है। हालांकि वो लीगल नहीं कह सकते पूरी तरह से, लेकिन वो जस्टिफाइड है। लेकिन ये बात क्लियर है कि किसी पब्लिक लाइब्रेरी से, ऐसी जगह से हम कोई ऐसी किताब की मतलब पूरी तरह से फोटो कॉपी नहीं मांग सकते, अटेस्टेड कॉपी उसकी नहीं मांग सकते, सर्टिफाइड कॉपी नहीं मांग सकते। ये मतलब इसके अंतर्गत आपका प्रोहिबिटेड होता है, मतलब एग्जम्पशन मतलब जो 9 के अंतर्गत ये एग्जम्प्ट होता है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और हमारे बीच में आप सर जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करेंगे और वो आगे आपको इसके विषय में बताएंगे। नमस्कार सभी साथियों को। आज का विषय वाकई जैसा भाई वीरेंद्र ठक्कर जी ने कहा बहुत महत्वपूर्ण है और इस कॉपीराइट के संबंध में हम में से ज्यादातर लोगों को कम ही जानकारी होती है। तो शिवानंद जी को धन्यवाद कि ये विषय आज के वेबिनार के लिए चुना। भाई वीरेश बेल्लूर जी ने और ठक्कर साहब ने और उनके सवालों के जवाब में बहुत अच्छी जानकारियां इसके बारे में आई। हम सामान्य व्यक्ति को कॉपीराइट के बारे में सब कुछ बहुत थोड़े में समझ में आ सके उस हिसाब से कुछ चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली बात तो जो शिवानंद जी ने कही थी कि सूचना आयुक्त के नाते 5 साल के कार्यकाल में हमारे सामने कॉपीराइट से संबंधित एक भी प्रकरण नहीं आया और आमतौर पर आते भी नहीं, लेकिन फिर भी हमको कॉपीराइट के बारे में जानना आवश्यक है। RTI एक्ट की धारा 8 में भी कॉपीराइट का उल्लेख इसी कारण से किया गया है। धारा 9 में इस प्रावधान में कहा गया है, RTI एक्ट की धारा 9 के प्रावधान में, कि धारा 8 के प्रावधानों पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना लोक सूचना अधिकारी ऐसी सूचना के आवेदन को अस्वीकृत कर सकेगा जिस सूचना से राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के मौजूदा प्रतिलिपि अधिकार, कॉपीराइट को हिंदी में प्रतिलिपि का अधिकार कहा गया है, प्रतिलिपि अधिकार का उल्लंघन होता है। अब इसमें राज्य का कॉपीराइट शामिल नहीं, राज्य आमतौर पर कॉपीराइट लेते भी नहीं है क्योंकि राज्य मतलब शासन की तो सारी जानकारियां ही लोगों को बताने के लिए होती है। तो इसमें राज्य की जो है केवल व्यक्ति के कॉपीराइट की बात है, किसी व्यक्ति का जिस चीज पे कॉपीराइट है उसकी जानकारी आपको नहीं दी जा सकती है। इसके लिए भारत की संसद ने, ये पूरे देश के लिए लागू कानून है, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 में पारित किया था हमारी संसद ने और पूरे देश में इसको लागू किया।
इस कानून का मुख्य उद्देश्य कॉपीराइट के मूल स्वामी को बेईमानी से की जाने वाली नकल से बचाना, उसकी रक्षा करना और अवैध लाभ प्राप्त करने की मंशा पे रोक लगाना। पेटेंट और ट्रेडमार्क ये इससे अलग है, वो कॉपीराइट एक्ट में नहीं गवर्न होते हैं। कॉपीराइट किन किन मामलों से जो लोग जुड़े हैं, जो कॉपीराइट लेते हैं, जैसे लेखक, प्रकाशक और अन्य रचनाकार और उपभोक्ता, इन सबके हितों के बीच संतुलन कायम करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। कॉपीराइट के तहत मूल सृजनकर्ता को या मूल रचनाकार को अपने कंटेंट यानी अपनी सामग्री में फेरबदल करने का, उसका पुनः उत्पादन करने का, प्रकाशित करने का, प्रसारित करने का, अनुवाद करने का, जनता तक पहुंचाने का अधिकार होता है जो कॉपीराइट लेता है उसको। यह एक प्रकार से बौद्धिक संपदा का अधिकार है। कॉपीराइट पंजीकरण होने के बाद ये कॉपीराइट अलग अलग मामलों में अलग अलग वर्षों तक वैध रहता है। जैसे किसी लेखक के मामले में उसने कोई पुस्तक लिखी है, कोई लेख लिखा है या कोई व्याख्यान दिया है, वो कॉपीराइट उसके जीवन काल तक तो वैध रहता ही है, बल्कि उसकी लेखक की मृत्यु के बाद 60 साल तक भी मान्य रहता है। इसी तरह संगीत के मामले में अलग अवधि है, फोटो के मामले में अलग अवधि है, कलाकार की किसी प्रस्तुति का कॉपीराइट है, उसकी अलग अवधि है इसकी वैधता की। और कॉपीराइट में क्या क्या चीजें आती है ये भी हमको जानना चाहिए। कोई भी किसी भी लेख पे उसका लेखक कॉपीराइट ले सकता है, पुस्तक पे लिया जा सकता है, व्याख्यान किसी विद्वान ने दिया है अपने व्याख्यान पे लिया जा सकता है, विज्ञापन पे कॉपीराइट लिया जा सकता है, वीडियो गेम पे जिसने बनाया है वो ले सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे कॉपीराइट लिया जा सकता है, किसी भी फोटो पे जो आपने खींचा है उस पर भी कॉपीराइट ले सकते हैं, ब्लॉग लिखा है आपने सोशल मीडिया पे उस पर ले सकते हैं, यूट्यूब पे आपने कोई सामग्री डाली है उस पर लिया जा सकता है, फिल्म पे लिया जा सकता है, धारावाहिक पर, गीत पर, संगीत पर, नाटक पर, टीवी शो पर, ऑनलाइन वीडियो पर, पेंटिंग पर, पोस्टर पर या किसी भी कलात्मक काम पे कॉपीराइट का पंजीयन कराया जा सकता है। यानी जिस चीज को पढ़ा जा सके, सुना जा सके, देखा जा सके और जो भौतिक रूप से उपलब्ध है, इन सब पर कॉपीराइट लिया जा सकता है। ऐसी दृश्य, श्रव्य और लिखित सामग्री का सृजन करने वाला यानी उसकी रचना करने वाला व्यक्ति या संस्था ही कॉपीराइट प्राप्त करने के पात्र होते हैं, अधिकारी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मित्र ने आपकी कोई फोटो खींची और उसका उसने कॉपीराइट ले लिया, तो वो आपकी अनुमति के बिना, तो चूंकि आपकी फोटो है, आपकी निजता के उसमें आती है, तो आपकी अनुमति के बिना तो प्रसारित नहीं करेगा। लेकिन अगर उसने कॉपीराइट ले लिया तो उस फोटो का उपयोग उस कॉपीराइट लेने वाले की अनुमति के बिना आप भी नहीं कर सकते, भले वो फोटो आपका है। ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसने कॉपीराइट ले रखा है, उसकी बिना पूर्व अनुमति लिए बिना कोई भी व्यक्ति या संस्था कॉपीराइट वाली सामग्री का उपयोग नहीं कर सकती है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माने का और 3 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। यह कानून जवाबदेही की गंभीर अनदेखी के तहत आने वाला अपराध है। कानूनी जवाबदेही की गंभीर अपराध की अनदेखी। इसीलिए कॉपीराइट उल्लंघन के जितने मामले न्यायालयों में जाते हैं, उनमें फैसले करते समय कोर्ट ये नहीं देखता है कि ये उल्लंघन जानबूझकर किया गया है या अनजाने में किया गया है। भारतीय कॉपीराइट कानून के प्रावधानों का सम्मान करते हुए आरटीआई एक्ट की धारा 9 में भी यह प्रावधान किया गया है कि कॉपीराइट यानी प्रतिलिपि करने के अधिकार के दायरे में आने वाली सामग्री आरटीआई में मांगे जाने पर नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि कॉपीराइट का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति और संस्था के पास
उस सामग्री या कंटेंट का इस्तेमाल करने का विशेष अधिकार होता है। यह अधिकार मौलिक सृजनकर्ता या मौलिक रचना करने वाले को ही मिलता है। किसी व्यक्ति का बनाया मौलिक कंटेंट या सामग्री अगर किसी स्टोरेज डिवाइस में, हार्डवेयर में सेव हो, तो उस व्यक्ति को अपने आप कॉपीराइट मिल जाता है। कुछ मामलों में कॉपीराइट का अधिकार रखने वाले व्यक्ति या संस्था की अनुमति लिए बिना उसके कंटेंट का, जिस पर कॉपीराइट है, उस सामग्री का कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है यदि वह स्वच्छ उपयोग यानी फेयर यूज की या फेयर डीलिंग की श्रेणी में आता है। ये जैसा पूर्व वक्ता ने भी कहा कि ये गैर व्यवसायिक इस्तेमाल के मामले में ये छूट है, कुछ हिस्से का उपयोग कर सकते हैं अगर अच्छी मंशा से किया गया है। कुछ व्यक्ति या संस्था कुछ शर्तों के आधार पर कॉपीराइट से सुरक्षित अपनी सामग्री के इस्तेमाल की इजाजत देते हैं। अगर आपको किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के बनाए कंटेंट यानी सामग्री का उपयोग करना है, लेकिन आपको नहीं पता है कि यह उपयोग बिना अनुमति के कर सकते हैं या नहीं, तो कॉपीराइट के जानकार से या वकील से सलाह लेना चाहिए। कॉपीराइट रखने वाले को भी अपने कंटेंट की कॉपी को इंटरनेट पर शेयर करने का अधिकार नहीं है। हालांकि किसी कंटेंट की कॉपी का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति को उस कॉपी को अपने दोस्त को देने का अधिकार है या बेचने का अधिकार है। कॉपीराइट पंजीकरण के लिए भारत सरकार ने एक कार्यालय खोला हुआ है दिल्ली के द्वारका इलाके में, कॉपीराइट कार्यालय है। वहाँ 50 से लेके 600 रुपए तक का एक शुल्क कॉपीराइट के लिए लगता है। कोई भी व्यक्ति वहाँ लिखित में आवेदन कर सकता है या स्पीड पोस्ट से या पंजीकृत डाक से भी अपना आवेदन निर्धारित फीस के साथ भेज सकता है। और ऐसे आवेदन पर पहले तो कॉपीराइट कार्यालय जांच करता है कि किसी और ने तो इस चीज का कॉपीराइट नहीं ले रखा है, या जो कॉपीराइट का अधिकार मांग रहा है उस व्यक्ति या संस्था की वो रचना मौलिक है या नहीं, यानी खुद उसने बनाई है या नहीं, किसी और की चोरी करके उसमें तो कॉपीराइट नहीं ले रहा है। सबकी जांच होती है 1 महीने तक, और अधिकतम 180 दिन के भीतर कॉपीराइट कार्यालय को इस आवेदन का निराकरण करना होता है। और कॉपीराइट के लिए आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इसके लिए भारतीय कॉपीराइट कार्यालय की वेबसाइट है। ये कॉपीराइट कार्यालय आता है भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार उन्नयन विभाग यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, उस डिपार्टमेंट के तहत, और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके अंतर्गत ही आता है। मोटी मोटी इस बारे में यही बातें थी, और बाकी बातें प्रश्नों के उत्तर में स्पष्ट हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आनंदीप सर, आपने विस्तार से कॉपीराइट इशू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इन सब विषय में से जुड़े हुए मामलों पर इन डेप्थ जानकारी आपने प्रदान की। और हम आगे अब चलते हैं, प्रश्न हम लेंगे, लेकिन इसके पहले हम माननीय शैलेश सर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, शैलेश गांधी जी, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त। तो सर हार्दिक स्वागत है आपका। और आज का विषय जिस प्रकार से आपने देखा कि आरटीआई कानून में धारा 9 को लेकर के जो अक्सर हम बात करते हैं, और विशेष तौर पर आप बात करते हैं धारा 8 और 9 की, जो एग्जाम्पशन क्लॉज के तहत आता है कि कौन सी जानकारी दिया जाना चाहिए अथवा नहीं दिया जाना चाहिए आरटीआई के तहत। तो चूंकि 8 की तो हमने काफ़ी बातें की थी, लेकिन 9 का थोड़ा सा ये बचा हुआ था, और हालांकि टॉक में अक्सर आ जाता था थोड़ा बहुत भाग, लेकिन चूंकि इसको एक डेडिकेटेड संडे आज हमने इसको वो किया हुआ है, रखा हुआ है इसके लिए, तो कृपया इस पर आप अपनी बात रखें। और विशेष तौर पर यदि उसका भी आप उल्लेख करें कि जब आप स्वयं भी सूचना आयुक्त थे, तो उस दौरान यदि ऐसे मामले, क्योंकि आप केंद्रीय सूचना आयुक्त थे, तो वहाँ पर केंद्र में इस तरह से कुछ मामले को की आते रहे होंगे, तो यदि कुछ ऐसे मामले आए रहे हों और आपने ऐसे कुछ डिसीजन दिए रहे हों, तो लोगों को वो भी जान करके खुशी होगी। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सबको। मेरे सामने 20,000 के ऊपर जो मैंने डिसीजन दिए, उसमें 6-7 केस में कॉपीराइट का मामला उठाया गया था। इंटरेस्टिंग मामले थे। एक केस में बिल्डिंग प्लान्स मांगे थे किसी ने,
उन्होंने कहा था कॉपीराइट है। कॉपीराइट रजिस्टर करने से ही नहीं, आप कुछ भी लिखें, प्योर थियरी में देखें तो आप एक पत्र लिखें, वो भी आपका कॉपीराइट है। वो रजिस्टर करवाए वो अलग बात है, बट रजिस्टर ना भी करवाए तो आपका कॉपीराइट है और उसका परफेक्ट। पर कॉपीराइट में एक बहुत महत्व का मुद्दा ये है कॉपीराइट एक्ट के तहत कि उससे किसी का कमर्शियल नुकसान होना चाहिए और किसी का कमर्शियल फायदा होना चाहिए। अगर वो कमर्शियल फायदा या नुकसान नहीं है तो वो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाता। तो बिल्डिंग प्लान से मैंने कहा कि इसमें कोई कमर्शियल फायदा किसी का नहीं दिखाई दे रहा है और इसको कॉपीराइट के तहत मैं एग्जाम नहीं करूंगा सेक्शन 9 में, और मैंने प्लान्स को देने की बात कही थी। दूसरा एक इंटरेस्टिंग केस था जहां पे किसी ने लीगल एडवाइस जो लॉयर ने दी थी किसी यूनिवर्सिटी को, उसकी कॉपी मांगी थी और उन्होंने मना कर दिया था 2 सेक्शंस पे आधार रख के। सेक्शन 81E फाइड्यूशियरी, एक ये कह के कि ये फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप है और दूसरा ये कह के कि ये कॉपीराइट है एडवोकेट का। मैंने दोनों एक्सेप्ट नहीं किए थे। सेक्शन 81E मेरे हिसाब से जो है वो लॉयर जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट देता है वो फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप में है और वो उसको शेयर नहीं कर सकता है। अगर जो क्लाइंट है वो लॉयर की एडवाइस को 50 लोगों के साथ जाके शेयर कर सकता है। अगर मैं डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर मेरी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते हैं 81E के तहत। अगर जो डॉक्टर मुझे एडवाइस दे वो मैं जाके 100 लोगों को बता सकता हूँ, पब्लिश कर सकता हूँ और उसमें कोई इंफ्रिंजमेंट नहीं है। सेक्शन 9 की जहां तक बात हुई, मेरा ये कहना था कि इससे कमर्शियल फायदा किसी को हो, मतलब ये कॉपी करके इसको डुप्लीकेट करके रेप्लिकेट करके, ऐसा मुमकिन नहीं है, इसके लिए नहीं, इसको मैं मानता हूँ। और एक इंटरेस्टिंग केस आया था कि प्लेगियरिज्म का। किसी यूनिवर्सिटी में जो एप्लीकेंट था उसका ये कहना था कि मेरी थीसिस, पीएचडी की थीसिस कंप्लीट कॉपी करके सबमिट की गई है और उसमें सर्टिफिकेट दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। मास्टर्स था या डॉक्टरेट था मुझे याद नहीं है। और यूनिवर्सिटी मना कर रही थी हम नहीं देंगे, हमारी लाइब्रेरी में सब थीसिस होती है। ये कहता था मुझे, उसने एक कॉपी लेके आया था और उसका ये कहना था कि ये ही कॉपी है इनके पास, मगर मुझे ऑथराइज चाहिए ताकि मैं इसका प्रूव कर सकूं ये प्लेगियरिज्म का मामला है। ये बड़ा टेढ़ा मामला था। यूनिवर्सिटी कॉपीराइट भी क्लेम कर रही थी और कह रही थी ये कॉपीराइट है, हम नहीं देंगे। मैंने इसका रास्ता ऐसे निकाला था कि भाई ये ऐसा लग रहा है उसके बात पे से, और उसने और भी कुछ एविडेंसेस दिए कि यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को लिखा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लिखा है, मगर कोई जवाब नहीं दे रहे क्लियर कट कि ये कॉपी है या नहीं है। तो उसको मैंने लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में करके देने को बोला था। अगर मेरे हिसाब से कॉपीराइट में फंडामेंटली ये देखना चाहिए कि इससे किसी को कमर्शियल नुकसान और किसी को कमर्शियल फायदा होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो इट्स फेयर यूज मेरे हिसाब से। जैसे आतिश जी ने कहा, बहुत कम किस्से ऐसे आते हैं, ये 5-6 किस्से से, ये अलग अलग प्रकार से थे। और क्योंकि मैं एक तरह से ट्रांसपेरेंसी में मेरा श्रद्धा है, मैं मानता हूं कि ट्रांसपेरेंसी से तो समाज को बेटर होगा, इसलिए शायद मैंने ऐसे निर्णय दिए थे। मगर मैं सचमुच मानता हूं कि कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट तब होता है, नहीं तो हर चीज आप पत्र लिखिए वो भी कॉपीराइट है। आप जो किसी पिक्चर का कॉपी लेके किसी को दिया जाए, अगर सेंसर बोर्ड में आप कहें कि फलाने मूवी का मुझे कॉपी दीजिए, तो वो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट होगा और वो नहीं देना चाहिए होगा। चैट बॉक्स में डालता हूं अगर किसी को देखना हो तो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने काफी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी और आपने स्वयं के भी काफी अनुभव आपने साझा किए। और एक चीज आपने जो विशेष तौर पे बताई है कि
जानकारी देने से भी किसी को कॉमर्शियल नुकसान या फायदा ना हो, इन चीजों का भी देखा जाना बहुत आवश्यक है। तो ये हमारे ख्याल से सभी सूचना आयोग में इस चीज को फॉलो किया जाना चाहिए। जब इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए जा रही हो और डिनाई किया जाना है तो इन चीजों को जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। कई बार आंख मूंद करके जानकारी नहीं देना है, कॉपीराइट्स का वायलेशन हो रहा है, ऐसा मान करके जानकारी डिनाई करना भी अनुचित होगा। तो आपने जो अपना एक पैमाना आपने जो बनाया था, जो मापदंड आपने बनाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और हम आगे बढ़े और हमारे बीच में जो हैंड रेज हैं अब हम उनको एक एक करके, बीरेन जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज। बीरेन जी, सामने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में भी इसमें थोड़ी चीजें ऐड करना चाहता हूँ कि जो प्लेजरिज्म के बारे में एक्ट 1957, लेकिन अब यूजीसी ने भी आ गए हैं, तो इसे उसको मेजर किया जाता है कि लेवल 1 प्लेजियरिज्म, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से इसको ग्रेड किया जाता है। और इसमें चोरी, साहित्य चोरी करने वाले छात्रों को और साहित्य चोरी करने वाले शिक्षकों को भी ग्रेडेड पनिशमेंट, मतलब सिविल पनिशमेंट का प्रावधान इसमें है कि उनका थीसिस रिजेक्ट किया जा सकता है, या उनको रीराइट करने के लिए कहा जा सकता है, या उनका ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। टीचर यदि हो तो फिर उसमें प्रमोशन उनके रोके जा सकते हैं, या उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी देने से मना किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि इसमें जो अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। वैसे आत्मदीप सर ने बहुत अच्छी जानकारी कॉपीराइट के बारे में दी, लेकिन जो दूसरे राइट्स होते हैं जैसे कि पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग केसेस मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें काफी अच्छा केस लॉ है। तो पेटेंट जो होता है वो 20 साल तक होता है। कोई भी अमुक प्रोसेस के लिए पेटेंट होता है कि अमुक चीज को, या कोई इन्वेंशन वगैरह है, साइंटिफिक इन्वेंशन, तो इसको, इसमें दूसरों को कंपटीशन को आने से रोकना, तो इसलिए वो गवर्नमेंट को एक डिस्क्लोजर करता है और पेटेंट ऑफिस को वो उसको बनाने की विधि बता देता है। आफ्टर 20 years इट इज फॉर पब्लिक बेनिफिट, मतलब इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द कंपटीशन कैन एंटर द मार्केट। तो 20 साल तक सरकार उसको गोपनीय रखती है, और इसलिए पेटेंट होता है। एंड इट इज ए टेरिटोरियल राइट, मतलब जहां जहां जिस कंट्री में लेना होता है तो हर कंट्री की गवर्नमेंट को अलग अलग अप्लाई करना होता है साइंटिस्ट या इन्वेंटर को, और फिर वो बेच सकता है, लीज पे दे सकता है, जैसे कि रॉयल्टी उसको उसका मिलता है। सो पेटेंट इज फॉर 20 years। कॉपीराइट जो होता है वो जनरली 60 साल के लिए होता है, और एक से ज्यादा ऑथर हो तो सबसे आखिरी में जो ऑथर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद 60 साल तक होता है। जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि जैसे प्रेमचंद के उपन्यास, अब प्रेमचंद की मृत्यु को 60 साल से ऊपर हो गए, तो अब से वो पब्लिक डोमेन में आ गया है, तो उसके लिए प्रेमचंद जी के फैमिली को रॉयल्टी देने की आवश्यकता नहीं है। या फिर जैसे सपोज गीतांजलि है, सो रविंद्रनाथ टैगोर की, अब उसको किसी को छापना है तो कोई भी पब्लिशर छाप सकता है, क्योंकि वो उनकी मृत्यु के बाद 60 साल से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, तो अब उनकी फैमिली को रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है। ट्रेडमार्क जो होता है ये फिल्मों के नाम पे भी होता है और संगीत के लिए भी होता है, जैसे कि आत्मदीप साहब ने कहा। इससे रिलेटेड कुछ मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे फिल्मों के जो नाम होते हैं वो 10 साल तक रिपीट नहीं किए जा सकते। एनीवे दे कैन बी रिन्यूड, रिन्यूअल 5 साल 7 साल। जो ट्रेडमार्क एक्ट भी इंडिया में है तो ट्रेडमार्क एक्ट के मुताबिक अलग से किया जा सकता है। और इंडिया जो है वो ट्रिप्स, मतलब ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सिग्नेटरी है, और 1995 में इंडिया ने इसको साइन कर लिया। उसके बाद हमारे जो अधिकतर जो बौद्धिक संपदा कानून है वो 1999 2000 में चेंज भी हुए, मतलब जो पहले के कुछ कानून थे उसमें संशोधन किए गए और कुछ नए कानून भी इसमें किए गए। तो इसमें जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट भी आता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स डिजाइन लेआउट डिजाइन एक्ट भी आता है। इसके अलावा जो डिजाइन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट है, और जो ट्रेड सीक्रेट्स है, ये सभी चीजें प्रोटेक्टेड है किसी ना किसी कानून के तहत। ट्रेड सीक्रेट्स के लिए सिर्फ भारत में अलग से कानून नहीं है। ट्रेडमार्क जो होता है उसमें कोई भी फिल्म का टाइटल आप 10 साल तक रिपीट नहीं कर सकते। मैं इसके एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे पहले दिलीप कुमार की देवदास आई, अब उसके बाद शाहरुख खान की देवदास आई, तो देवदास नाम कैसे रिपीट कर सकते हैं? वो इसलिए कि प्रोटेक्शन केवल 10 साल तक होता है, इसलिए दिलीप कुमार की देवदास के बाद चूंकि 10 साल से ज्यादा व्यतीत हो चुके थे, तो शाहरुख खान की देवदास आ सकती है और उसमें किसी भी टाइप का वायोलेशन नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, जैसे कि डॉन फिल्म आई, पहले अमिताभ बच्चन की डॉन आई, उसके बाद शाहरुख खान की डॉन आई, ये कैसे आ सकता है? वो इसलिए कि उसमें 10 साल से ज्यादा का गैप था, तो इसलिए अमिताभ बच्चन की डॉन के बाद सेम स्टोरी पर
वो आ सकता है, बिकॉज जो बोलता है कि मेरी एक्टिंग अलग है, बिकॉज देयर इज सम क्रिएटिविटी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि फिल्म स्टार जो होते हैं वो एंटी पायरेसी कैंपेन चलाते हैं, बिकॉज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन हैज टू बी एनकरेज। कुछ ऐसे एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जहाँ पर इसका वायोलेशन हुआ या क्लेम किया गया या कोर्ट केसेस हुए, जैसे कि दबंग फिल्म का एक गाना था, मुन्नी बदनाम हुई, उसमें उन्होंने झंडू बाम मैं झंडू बाम हुई तेरे लिए, इस तरह का एक लाइन इस्तेमाल की थी। तो झंडू फार्मास्यूटिकल्स वालों ने केस कर लिया कि आप हाउ यू कैन यूज सच ए लाइन कि मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो इन्होंने प्रोटेक्ट किया कि ये जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है सर, कि इसमें जो ट्रेड मार्क्स होते हैं, तो उन्होंने ये केस कर दिया कि आप इस तरह की लाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते और आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि झंडू फार्मास्यूटिकल इज ए रेपुटेड आयुर्वेदिक फर्म और आप इस तरह से नाम यूज नहीं कर सकते। झंडू वालों ने डिफेंड किया कि भाई वी हैव यूज्ड इट इन नॉट यूज्ड इट इन अ डिरोगेटरी सेंस, हमने तो यही बोला है कि वो बहुत सूथिंग है, रिलैक्सिंग है, और इस तरह से हीरोइन ने उसको यूज किया है, तो इसमें कोई चीज गलत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपने यूज किया है एंड देयरफॉर यू विल हैव टू पे एज द कॉम्पेंसेशन। बाद में खैर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया, और उसके बाद फिर हमने देखा कि टीवी पर दबंग 2010 और उसके बाद जो ये है झंडू, ये दोनों की ज्वाइंट एडवर्टाइजमेंट आने लग गई। 2 साल बाद फिर एक मामला हुआ। इसमें फिर यह हुआ था कि एक दबंग 2 आई 2012 में। 2012 में ये हुआ कि उन्होंने फिर एक लाइन इस्तेमाल किया। उसमें ये था कि मेरी फोटो को सीने से यार चिपकाई ले सैया फेविकॉल से। अब फेविकॉल इज ए ट्रेडमार्क ऑफ पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो फिर सवाल ये उठा कि क्या इस तरह के कोई यूज कर सकते हैं कि चिपकाई ले सैया फेविकॉल से, फेविकॉल इज ए ब्रांड नेम, इट इज ए ट्रेडमार्क। तो फॉर्चुनेटली इस बार कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने दबंग के जो प्रोड्यूसर्स है, दे हैड लर्न फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड दे हैड टेकन ड्यू परमिशन फ्रॉम पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसलिए इस तरह का कोई मामला उसमें नहीं हुआ। और शुरुआत से ही हमने देखा कि दबंग 2 प्लस फेविकॉल, इसकी जॉइंट एडवर्टाइजमेट आने लग गई। शायद फेविकॉल वालों ने भी सोचा होगा कि भाई इससे अच्छी हमारे लिए कोई बढ़िया एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकती, कि चलो हीरोइन हीरो को बोल रही है कि मेरी फोटो को सीने से यार चिपकाई ले सही या फेविकॉल से। दूसरा एक जो ट्रेडमार्क से रिलेटेड कुछ केसेस है, उसमें ये होता है कि कोई भी चीज का जो मतलब डिसेप्शन या ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं की जा सकती कि जैसे कस्टमर के साथ चीटिंग हो। जैसे पार्ले बिस्किट है, अब पार्ले बिस्किट का स्पेलिंग किसी ने बदल दिया, परेल कर दिया, अब पार्ले भी उसी के जैसा बच्चा बना लिया, पार्ले के जैसा। नाउ जो कस्टमर इंग्लिश पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो तो चीट हो जाता है। तो ऐसे में फिर कॉपीराइट बोर्ड रोक लगाता है कि इस तरह के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और पार्ले बिस्किट का जो नाम है, तो आपको पार्ले से परमिशन लिए बिना दूसरे लोग यदि उसको करते हैं तो इस पर वो रोक लगाते हैं। तो इस तरह के कुछ केसेस है इंटरेस्टिंग। तो एक फेयर एंड लवली वर्सेस फेयर एंड हैंडसम का भी केस है। इसमें इमामी कॉस्मेटिक्स का ट्रेडमार्क था फेयर एंड लवली। उसके बाद फिर ये HUL जो है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फेयर एंड हैंडसम किया। तो ये भी केस काफी चर्चित हुआ था, और उसमें फिर उस पर रोक लगा दी गई हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड पर कि आप ऐसा यूज नहीं कर सकते। बाद में उनको नाम बदलकर ग्लो एंड हैंडसम करना पड़ा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग केसेस है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, जो 81D में आता है RTI एक्ट के। धन्यवाद। शैलेश सर ने कुछ चैट बॉक्स में प्रश्न डाले हुए हैं। अच्छा, यस मैं देख रहा हूँ, यस। उसको देख लीजिए और आप कृपया उस पर। हाँ जी, उसमें जो शैलेश गांधी साहब ने कहा है कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इज वन वे नॉट टू वे। हाँ जी सर, वो तो 81E में आता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जबकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट 81D में है। और फिर जो एक और भी कमेंट पहले किया है, हाँ, लीगल एडवाइस के मामले में जो बात आई थी, जो कुलदीप सिंह साहब ने कहा था, इसमें एक्चुअली क्या है कि थोड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ भी है, कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर है, तो इसमें जो एडवोकेट द्वारा दिया गया जो एडवाइस है वो प्रोटेक्टेड है। और ये मामला मेरे ख्याल से किसी हाईकोर्ट के सामने गया था, बिकॉज देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट एंड RTI एक्ट। लेकिन वहां पर उन्होंने ओवर राइडिंग इफेक्ट माना था RTI एक्ट का, और उसमें कहा था कि यदि वो चीज रिटर्न है और एडवाइस और ओपिनियन है, देन दैट अमाउंट्स टू इन्फॉर्मेशन, और वो देना पड़ेगा। और यदि वो रिटर्न नहीं है, तो फिर जो कंसल्टेशन है एडवोकेट के साथ वो डिस्क्लोज करने के लिए वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो फिर 2F में वो सूचना ही नहीं है। और वैसे भी वो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो एडवोकेट के साथ जो कंसल्टेशन होता है वो प्रोटेक्टेड है, तो फिर वो देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह का किसी हाईकोर्ट का एक निर्णय है, ऐसा मुझे ख्याल है। मेरे हिसाब से RTI एक्ट कहता है इट ओवरराइड्स ऑल अदर एक्ट्स,
हाँ यस अगर सर, इनकंसिस्टेंसी है इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ तो आरटीआई एक्ट शुड ओवरराइड, दैट इज माय ओपिनियन। हाँ यस यस, और हाईकोर्ट ने भी मेरे ख्याल से यही होल्ड किया था कि इसमें जो देयर वाज आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडियन एविडेंस एक्ट, जो प्रोटेक्टेड ये जो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन होता है एडवोकेट्स के साथ, तो वो डिस्क्लोज किया जाए कि नहीं किया जाए, ये क्वेश्चन था। और वहां पर पीआईओ ने ये डिफेंस लिया था कि वी आर प्रोटेक्टेड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट और इसलिए हम ये सूचना नहीं देंगे। तो आई थिंक दैट वाज ओवर रूल्ड बाय सम हाई कोर्ट, ऐसा एक केस हुआ था। बाकी सेक्शन 51 में आपने जो सर इसमें ये किया है, तो इसमें कुछ जो रिमिक्स और सीक्वल के बारे में मैं बता देता हूँ कि इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट था, जो म्यूजिक के जो ये होते हैं उसमें ऐसा हुआ था कि कुछ केस ऐसे हुए थे कि जहाँ पर पुराने गानों को मतलब एक नया म्यूजिक या कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई सिंथेटिक म्यूजिक ऐड करके उसको जोड़ देते थे। तो इसमें काटा लगा का केस हुआ था। उसमें काटा लगा जो है, जो ओरिजिनल गाना तो समाधि फिल्म का है, जो लता मंगेशकर का है, और सेम गाना उन्होंने यूज कर लिया था। बट देयर वाज ए जजमेंट कि उसमें म्यूजिक है वो नया है और म्यूजिक में क्रिएटिविटी है, और इसलिए वो रिमिक्स जो है वो लीगल है, उसमें कोई कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। तो उसके बाद फिर ये जो आया, काफी बाढ़ आ गई उसके बाद तो रिमिक्स की, और वो टाटा लगा के बाद फिर कलियों का चमन और ऐसे बहुत सारे गाने आए थे, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट एक्ट। और उसके बाद फिर जो सीक्वल आते हैं, अब सीक्वल में क्या होता है कि ट्रेडमार्क का वैसे वायोलेशन 10 साल तक तो नहीं हो सकता, क्योंकि 10 साल तक एक फिल्म का नाम दे नहीं सकते। तो सीक्वल में क्या करते हैं कि जैसे एक फिल्म हिट हो गई, नाउ दे वांट टू कैपिटलाइज ऑन देयर से प्रीवियस मूवी नेम। तो जैसे दबंग के बाद दबंग 2 आ गया, नाउ दैट इज नॉट ए वायोलेशन, बिकॉज क्योंकि केस करेगा कौन, वो खुद ही तो प्रोड्यूसर है, खुद ही डायरेक्टर है, और वो कई बार तो स्टार्स भी रिपीट होते हैं, तो उसमें कोई वायोलेशन नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि उसमें जस्ट टू सर्कमवेंट द लॉ, दबंग 2 आ गया, या फिर गोलमाल है तो गोलमाल 2, गोलमाल 3, गोलमाल 4, उसके बाद आशिकी, आशिकी 2, इस तरह से कर लेते हैं ताकि उसमें ट्रेडमार्क एक्ट का कोई वायोलेशन ना हो। तो इस तरह से उसमें ये आता है। कुछ क्वेश्चंस भी है इसमें देवेंद्र अग्रवाल जी के। इसमें इन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन की आवाज में मिमिक्री कर सकते हैं कि नहीं। देखिए इसमें ऐसा होता है देवेंद्र जी कि इसमें जो ये है कि मिमिक्री जो होता है दैट इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो उसमें एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कोई चीज करता है तो इवन आईपीसी में भी वो क्राइम नहीं है। जैसे कि फिल्म, जैसे कि कोई पुलिस का यूनिफॉर्म पहनता है, या कोई इट डजंट कम अंडर इम्पर्सोनेशन। जैसे कि आप देखिए कोई फिल्म थी आई थिंक गोविंदा की, बनारसी बाबू या इस टाइप की, जिसमें कभी डॉक्टर, कभी वकील, कभी जज, वो अलग अलग फोटो खिंचाते रहता है और वो हीरोइन देखती है। तो उसमें क्या है कि इट इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो उसमें क्लियर है कि उनका कोई डिसेप्शन या चीटिंग का कोई इंटेंशन नहीं है, एंड बिकॉज देयर इज नो क्रिमिनल इंटेंशन, तो वो आईपीसी में भी वो क्राइम नहीं बनता है। रही बात जो ये फोटो इस्तेमाल का आपने लिखा है सचिन तेंदुलकर, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून नाम से आपको हर सिटी में वो मिल जाएंगे कि लोग अमिताभ बच्चन, मतलब जब उनके वो हेयर स्टाइल की लोग नकल करते थे, या फिर जैसे शाहरुख खान के टाइप की हेयर स्टाइल लोग बना देते थे, तो आपने देखा होगा कि बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून नाम से हर शहर में आपको एक वो मिल जाएगा दुकान, और उस पर फोटो भी लगाते हैं। लेकिन ये कि दिस फिल्म स्टार यूज इट एज ए इंडेक्स ऑफ देयर पॉपुलैरिटी, और फिर ये कि उसी से उनकी फिल्म भी चलती है, फिल्म से उनको काफी अच्छी कमाई मिलती है। तो वो ये नहीं करेंगे कि भाई अमुक किसी हेयर कटिंग सलून वाले पे केस कर दे कि भाई आपने बिना मतलब बिना परमिशन के आपने हमारा यूज क्यों कर लिया, क्योंकि वो तो एक लुक अलाइक होता है। वो जरूरी नहीं कि वो बोले कि भाई आपकी फोटो लिए बिना परमिशन के। तो और कई बार तो ये होता है कि गवर्नमेंट कैंपेन वगैरह के लिए वो लोग फ्री इस्तेमाल करने के लिए भी परमिशन देते हैं। सो नोबडी बॉदर्स टू गो टू ए कोर्ट ऑफ लॉ। तो उसमें अपना वो एनफोर्स करने के लिए, या हमारी फोटो आपने क्यों इस्तेमाल कर दी है, क्योंकि वो पब्लिक, यदि वो अथॉरिटी है, तो जैसे अभी कोर्ट ने भी एक केस में कहा था कि पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक फिगर्स हैव टू बी थिक स्किन्ड, थोड़ा मोटी चमड़ी का बनना मांगता है। तो इतने सेंसिटिव नहीं होते कि छोटी छोटी बातों की वजह से किसी पर वो केस करे, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा लीगलिटीज में नहीं जाता है। और जो स्टार्स वगैरह होते हैं वो भी उसको पॉपुलैरिटी इंडेक्स की तरह ट्रीट करते हैं, और उनको कोई चीप पॉपुलैरिटी या ऐसा हासिल नहीं करना है कि किसी के ऊपर केस करे या उसका कमर्शियल फायदा उठा ले। वैसे भी उनकी फिल्में चलती है, उससे काफी कमाई होती है। तो ये जो सचिन तेंदुलकर या किसी की फोटो जैसे अमिताभ बच्चन की या इसकी वो यूज करते हैं, तो फिर वो उसमें कोई ऐसा वायलेशन नहीं आता है। दूसरी बात जो आपने लिखा विराट कोहली के स्केच पर डायलॉग कमेंट रख सकते हैं या नहीं, उसमें एक ही जो देखो एक सामान्य सा रूल है कॉमन लॉ का। कॉमन लॉ विधि में ये होता है कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस, तो पब्लिक परफॉर्मेंस को लोग अपनी अपनी कमेंट कर सकते हैं, लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई फेसबुक पोस्ट किया है, आपने कोई ब्लॉग पोस्ट किया है वेबसाइट पर,
या आपने कोई भी किया है तो लोग उस पर कमेंट करेंगे। आप यदि गाना गाते हैं, कोई बोल सकते हैं कि भाई आपने अच्छा गाया, कोई बोल सकता है बुरा गाया। आप यदि फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, कोई बोल सकते हैं कि वो हिट है, कोई बोल सकते हैं कि वो फ्लॉप है। तो इट ऑल कम्स अंडर फेयर क्रिटिसिज्म, और फेयर क्रिटिसिज्म कोई चीज है तो वो चीज गलत नहीं है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। द ओनली थिंग इज criticism should be restricted only to the extent it is reflected in that work of art or piece of art। ये ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। बीरेन जी, बबलू घोष जी का ये प्रश्न ले लेते हैं। बबलू घोष जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, क्या आपका प्रश्न है? शिवानंद जी, एक सुझाव है बीच में, सॉरी। हाँ जी। ये कंपनी ला के अध्येता हमारे बीच में है कुलदीप सिंह जी, उनके कुछ मैसेज चैट बॉक्स में हमने पढ़े हैं, उनके पास अच्छी जानकारियां हैं। तो जब आप उपयुक्त समझे थोड़ा सा समय कुलदीप जी को भी दीजिएगा, वो हिंदी में अपनी सब बात बताएं। हाँ बिल्कुल, कुलदीप जी को अपन बबलू घोष जी का एक प्रश्न ले लेते हैं, फिर कुलदीप जी अपनी बात रखें। बबलू घोष जी। हाँ सर नमस्कार, हम झारखंड के जामताड़ा जिले से हैं। सर मुझे जानकारी यही चाहिए कि एक डिप्टी कमिश्नर एक जिले में कितने दिन तक वो सेवा दे सकते हैं? ये तो यार आरटीआई से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, और ये सेवा रूल इनके जो भी होते हैं सिविल सर्वेंट्स के और लोक सेवकों को, वो उसमें देखने पड़ेंगे। यदि यहाँ पर किसी को जानकारी हो तो आप लोग कृपया दे दें, किसी को पता होगा, हमें तो एग्जैक्ट जानकारी इसके चलते सर हम इसका जानकारी लेने के लिए हमारे झारखंड के कार्मिक प्रशासनिक विभाग में भी एक आरटीआई लगाए हैं, लेकिन कुछ जवाब नहीं मिले हैं। नहीं, सामान्य तौर पर हमारे मध्य प्रदेश में 3 साल तक एक जगह पर लोग कम से कम रह सकते हैं, मतलब कम से कम तो और रह सकते हैं, अधिक मतलब अधिकतम 3 साल तक का उनका रहता है। और यदि 3 साल से ज्यादा रहना है तो रहते तो हैं लोग बाग इलीगल तौर पे, लेकिन फिर उस पर कंप्लेन वगैरह होती है तो गवर्नमेंट एक्शन भी लेती है, तो इस तरह से रहता है। बाकी और हम नहीं बता पाएंगे आपको। कुलदीप जी, मैं इसमें बताता हूँ, ये सीसीए रूल में आता है। तो इसमें ये होता है कि जैसे आईएएस ऑफिसर है तो इनके नॉर्मली 3 साल बाद ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं तो इसमें भी जो फाइनेंशियल हैंडबुक है अलग अलग स्टेट की, तो फाइनेंशियल हैंडबुक में ये प्रोविजंस है अलग अलग स्टेट्स के, तो उसमें ये चीज दिया होता है। हाँ एक सेकंड, अभी आप होल्ड करिए, कितने टाइम बाद उनका ट्रांसफर वगैरह हो सकता है। और दूसरी बात क्या है कि उत्तराखंड में इस मामले में काफी भ्रष्टाचार पाया गया था कि ट्रांसफर का एक बिजनेस या मल्टी करोड़ इंडस्ट्री हो गया था। इसमें ये लोग करते क्या है, या भ्रष्टाचार का तरीका मैं बताता हूँ कि मोडस ऑपरेंडी क्या होता है कि चूंकि हमारा हिली स्टेट है तो यहाँ पे सुगम और दुर्गम 2 तरह के स्कूल्स बने हुए हैं। मतलब जो है कि जहाँ तक अप्रोच रोड वगैरह सही है तो उसको सुगम बोलते हैं, जैसे कि हरिद्वार रोड की उधम सिंह नगर और ये सब, और जो पहाड़ी एरिया है ये सब दुर्गम माने जाते हैं। तो इसमें बिजनेस क्या चलता है कि पहले एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं कि जिसको ट्रांसफर करना है वो अपनी एप्लीकेशन दे। अब जो दुर्गम में होते हैं वो अपने ट्रांसफर के लिए करते हैं, और जो सुगम में ये फिर ट्रांसफर एक्ट पहले था नहीं, यहाँ पे स्टेट एक्ट है असेंबली का, तो वो क्या करते हैं कि दोनों टाइप की एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं। फिर ये कि जिनको ट्रांसफर नहीं चाहिए उनका जबरदस्ती ट्रांसफर कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि ट्रांसफर रोकने के लिए पैसा मिलता है, रिश्वत मिलती है, और जिनको ट्रांसफर चाहिए उनको ट्रांसफर नहीं देते, क्योंकि ट्रांसफर कराना है तो पैसा देना पड़ेगा, बिना रिश्वत के ट्रांसफर हो नहीं सकता। तो इसलिए क्या है कि दोनों तरफ से पैसा एक्सट्रैक्ट करते हैं कि पैसा इधर से भी लो उधर से भी लो, इस तरह से भ्रष्टाचार चलता है। धन्यवाद। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में उसको ट्रांसफर उद्योग कहते हैं। हाँ यस वो उद्योगी, तो यहाँ पे मतलब इतना ज्यादा हो गया, बाद में सरकार को ये सब चीजें रोकने के लिए ट्रांसफर एक्ट बनाना पड़ा, और ट्रांसफर एक्ट में फिर उनको ऐसे चिन्हित भी करने पड़े। और फिर हमारे यहाँ जितने भी क्षेत्र है ब्लॉक लेवल तहसील लेवल पर इन्होंने ये सब वो चिन्हित कर दिए कि सुगम क्या है और दुर्गम क्या है, और उसमें ये है कि अमुक इतने साल तक दुर्गम क्षेत्र में काम कर लिया है तो उसके बाद फिर उनको सुगम में ट्रांसफर कर दिया जाए या सुगम में ट्रांसफर होने की अपॉर्चुनिटी दी जाए। और फिर ये होता है कि जिनके अपने पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक कॉन्टैक्ट्स है, 1 साल के बाद भी ट्रांसफर नहीं करते हैं तो उसमें फिर आरटीआई लगा के लोग पता लगा लेते हैं कि इनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, और फिर उनका ट्रांसफर किया जाए। इस तरह के भी वो गवर्नमेंट को प्रत्यावेदन या शिकायत लोग देते हैं। जैसे नई सरकारें जब आती हैं और उनके पास पैसे की कमी रहती है तो सीधे गवर्नमेंट का फंड तो उठा नहीं सकते हैं, और तब उनका उतना अलॉटमेंट नहीं रहता, तो सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि ट्रांसफर उद्योग चालू कर देते हैं, और उसमें से फिट हो जाता है कि मतलब 4th ग्रेड के बाबू से लेकर के आईएएस ऑफिसर तक के कितने रहेंगे, और उनके दलालों के माध्यम से ये पूरा उनके पास तक पैसा जाता है, और पहले वो अच्छा मतलब शुरू में ही फिर उनका अपना एक बैलेंस बन जाता है बढ़िया तरीके से, फिर आगे का उनका काम फिर सुचारू हो जाता है। इतने में सरकारी योजनाएं भी आ जाती हैं, और फिर सरकारी योजनाओं में कमीशन खुली का अपना काम चालू हो जाता है, तो उसके माध्यम से भी उधर उनको मिलने लगता है। तो मतलब ये इस तरह से होता है। तो शुरुआती तौर पर मतलब जब किसी भी सरकार में बैठे हुए जो रहते हैं पार्टी के लोग,
उनको जब पैसे की शॉर्टेज रहती है तो सबसे पहला काम वो यही करते हैं, बीच बीच में ट्रांसफर उद्योग चालू कर देते हैं। चलिए आगे इसमें कुलदीप जी महाराष्ट्र, शिवानंद जी एक बात जोड़ना चाहूंगा, महाराष्ट्र में तो कितना पैसा कौन सी पोजीशन में मिलेगा उस पे इसका निर्भर होता है। जी जी कितना भ्रष्टाचार का स्कोप है, कितनी आमदनी हो सकती है भ्रष्टाचार से, उस पे इसका प्राइस तय होता है। एग्जैक्टली, वो सर हर जगह होता है, यहाँ भी वही है। मलाईदार पोस्टिंग जिसको कहते हैं कि जहाँ ज्यादा मलाई मिलती है। ठीक है कुलदीप जी, आप कुछ बात रखना चाह रहे थे, अनुदीप सर ने विशेष तौर पर। शिवानंद जी आगे किसी वेबिनार का ये भी विषय रखने पे विचार कर सकते हैं, तबादला उद्योग और आरटीआई, इस पर किस तरह से हम आरटीआई के जरिए इसको उजागर कर सकते हैं और रोक लगाने के प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इसमें थोड़ा सा एक्सपर्ट ढूंढना पड़ेगा जो ऑलरेडी उसके भुक्तभोगी रहे हों, जैसे रिटायर्ड IAS कुछ मिल जाएंगे। जी सर, मेरे सर पास 4 पॉइंट हैं जिस पे मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहला सर, ये वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत जो मैंने अपने अध्ययन किया उसका कंक्लूजन ये है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉडल डिसीजन दिया हुआ है ना, रिकॉर्डिंग के लिए। उस रिकॉर्डिंग के उस आदेश के तहत आयोग अपनी वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग चालू बिल्कुल कर सकता है, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा सर कि जो प्लेगरिज्म को लेके, साहित्यिक चोरी को लेके जो चर्चा चल रही है, क्योंकि मैं PhD स्टूडेंट रह चुका हूँ गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और हमें वहाँ पे कुछ अच्छे स्तर के PhD के हमें सॉफ्टवेयर प्रदान मतलब उपलब्ध हो जाते थे वहाँ के नेटवर्क में, इंटरनेट में। तो वहाँ हमने प्लेगरिज्म पे वर्क किया है। तो मैंने जो चीज़ पर्सनली सॉफ्टवेयर में डाल के जो देखी है वो ये है कि जब भी हम कोई थीसिस लिखते हैं, जो हमारा वर्क होता है, अगर आप लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, है ना, अगर आपके पास सिनोनिम्स और पर्यायवाची समानार्थी शब्दों का एक अच्छा संकलन है, तो आप कहीं ना कहीं प्लेगरिज्म से अपने आप को बचा सकते हैं, है ना। रिसर्च लेवल की जो थीसिस होती है उसमें मैंने ये चीज पाई है। तीसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगा कि कंपनी लॉ में भी पढ़ रहा था सर, जैसे ऊपर चर्चा चल रही थी, तो इसमें तो दोनों तरफ की रिलेशनशिप होती है, जिसके चलते जो एडवाइस दी जाती है जो एडवोकेट के द्वारा, वो कहीं ना कहीं देने से रोकी जा सकती है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो एडवाइस होती है ना, एक कैदी और एक अधिवक्ता जब जेल में मिलते हैं तो एक नियम ये होता है कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन सकता, है ना। उनको मतलब एक पर्सनल पेज दिया जाता है। जो अभी आप 30 मिनट का भी, कौन सा जैकलिन फर्नांडिस के बॉयफ्रेंड वाला जो केस अभी रिसेंट में चल रहा है, उससे संबंधित मामले में अभी परसों नरसों ही बताया जा रहा था। चौथी ये मैं कहना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन का जो विषय अभी देवेंद्र सर ने जो रेज किया, उसमें यह है सर कि आप जब तक, जैसे फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन की अभी तक यूज करते आ रहे थे, लोग करते आ रहे थे, मगर अगर सामने वाला उस चीज को लेकर ऑब्जेक्शन, देखिए प्रावधान, उसने परमिशन नहीं दिया है उस चीज के लिए ऑफिशियली कि कि आप मेरा उपयोग करिए, है ना, मेरी आवाज को उपयोग करिए, मेरी फोटो का उपयोग करिए। मगर कहीं ना कहीं जब उसने देखा कि लॉटरी के टिकट में अब उपयोग हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम मतलब इस तरह के कोई पान बाहर के पाउच में आप कोई अमिताभ बच्चन की फोटो डालने लग गया, जो कि कहीं ना कहीं कोई सिगरेट के पाउच में किसी एक्टर की फोटो डालने लग गया, तो ये कहीं ना कहीं एक अगर ऑब्जेक्शन उठता है तो कहीं ना कहीं जो प्लेंटिफ होता है, जो आवेदक होता है, जिसकी आवाज का, शक्ल का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो अपनी इन चीजों को बिल्कुल कानूनन रूप से बहुत अच्छी तरह से बचा सकता है। बस सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण। कुलदीप जी, आपने एक और जानकारी डाली थी चैट बॉक्स में कि केरल हाई कोर्ट के अनुसार एडवोकेट जनरल ने सरकार को सलाह दी है कि RTI एक्ट के तहत सूचनाएं देने को कॉपीराइट से छूट दी जाए, वो क्या है मामला? सर वो उसका डिसीजन एक्चुअली मैंने लाइव लॉ में बहुत पहले पढ़ा था, और ये डिसीजन सर मैंने उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे देखिए, वहाँ पे एक लिंक भी डली हुई है, सेक्शन 81E के तहत वहाँ पे दिया हुआ है सर। तो उसको थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा कि बहुत पहले मैंने पढ़ा था, मुझे याद आया कि एक ऐसा डिसीजन हुआ, तो मैंने अभी गूगल में सर्च करके उस चीज को शेयर किया है सर। तो थोड़ा सा उसको ना पढ़ना पड़ेगा मुझे भी कि एग्जैक्टली। बाकी हाँ, उसमें कुल मिला के लास्ट ये है कि जो एडवोकेट सजेशन देता है गवर्नमेंट को, वो RTI के अंतर्गत नहीं दी जा सकती। वैसे RTI एक्ट की धारा 9 में ही जो कॉपीराइट की है, उसी में कहा गया है कि RTI एक्ट की धारा 8 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये कॉपीराइट एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। सर मैंने तो लिंक RTI एक्ट में तो ये भी है कि अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है तो कैसे कंट्रोवर्सी हो जाती है। सर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कहना आपका बिल्कुल सही है। मैंने उससे पहले लिंक मैं कोशिश करता हूँ उसे फिर से शेयर करने की। तो मैंने जैसे कहा कि एक कैदी और एडवोकेट की बात जो है ना, वो शेयर नहीं की जा सकती, है ना। क्लाइंट और एडवोकेट का जो होता है, अब इसमें रहे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट,
तो सर इसके मिलते जुलते मैंने और भी डिसीजन पढ़े हैं, उनमें भी मेरा कंक्लूजन यही था कि जो एडवोकेट के जो सजेशंस एडवाइस होती है वो आरटीआई के दायरे से बाहर है। कुलदीप जी, एक इसको मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। जो इंफॉर्मेशन कैदी देता है लॉयर को, वो लॉयर नहीं शेयर कर सकता किसी के साथ कन्वेंशनली, मगर जो इंफॉर्मेशन या एडवाइस लॉयर देता है कैदी को, वो कैदी चाहे तो और 100 लॉयरों को बता सकता है कि ये मुझे एडवाइस मिली लॉयर से, अब मुझे क्या करना चाहिए। सिमिलरली डॉक्टर पेशेंट, सिमिलरली बैंकर कस्टमर। मेरे हिसाब से फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप वन में ही होती है, टू वे नहीं होती। लॉयर जो एडवाइस दे वो क्लाइंट जाके 50 लोगों की एडवाइस ले सकता है कि भाई मुझे ये लॉयर ने ये एडवाइस दी है, मैं क्या करूं। उसमें कोई बात होती नहीं है। सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा सर, जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर आप डॉक्टर अगर मान लीजिए कोई सर्जरी कर रहा है ना, तो वो सर्जरी का पूरा प्रोसीजर एक नॉर्मल व्यक्ति तो कर नहीं सकता। दूसरी चीज ये कि एडवोकेट जब अपने सजेशन देता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी तथ्यात्मक बिंदुओं पे दांव पेंच के साथ में होता है। तो मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ सर, सब अगर क्लाइंट जो अपना जिसने क्लाइंट ने एडवाइस लिया है, जो सजेशन लिया है, अगर वो 10 लोगों को बता भी देता है तो उससे कोई खास फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता, क्योंकि 10 लोगों के जो केस हैं वो अलग मैं अलग वही कह रहा हूँ कि जो एडवाइस लेता है वो फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप में नहीं माना जाता। एडवोकेट जो एडवाइस देता है उसको फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं माना जा सकता, उल्टा माना जा सकता। सर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप जहां तक मैं समझ रहा हूँ सर, उसकी डेफिनेशन में देख के, और मैंने कल कंपनी लॉ में भी पढ़ा था कि डायरेक्टर और एक प्रमोटर के बीच, सो दैट इज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, मतलब होता है एक ट्रस्ट की रिलेशन। तो सर ट्रस्ट की रिलेशन तो कभी भी एक पक्षीय हो ही नहीं सकती, ये तो दोनों पार्टी के बीच में ही होगी ना। ट्रस्ट इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप, दैट्स नॉट द ओनली थिंग। ट्रस्ट तो मुझे आप पे ट्रस्ट है, बट आपका और मेरा फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं है। सर अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर। ठीक है। हाँ जी। सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर, आपका मैंने एक लैंडमार्क जो जजमेंट पढ़ा था, मैं हमेशा से एक चीज पूछना चाहता था। आपका 48 आवर्स वाला जो एक मैंने लैंडमार्क जजमेंट पढ़ा था सर, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, है ना। आपने जिन परिवेश में जिस दौर में भारत रहा होगा 2006 या 2012 का 48 घंटे का जो आपका डिसीजन था, वो काफी प्रभावशाली रहा है, उससे मैं काफी प्रभावित हूँ सर। बस ये चीज मैं कहना चाह रहा था आपसे, आज मौका मिला। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। विशाल कुमार मालाकर जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? वंदे मातरम सर जी। आप लोगों का मार्गदर्शन देने वाले महापुरुषों का मेरे तरफ से सादर प्रणाम। आप लोगों ने जो मार्गदर्शन दिए हैं हम गरीब आदमी को सच्चाई के नाम चलने वास्ते, इसके लिए आप लोग को जब भी प्रशंसा करें बहुत कम है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा मार्गदर्शन दिया सच्चाई के नाम चलने के वास्ते कि आज भ्रष्ट अधिकारी जो है जय कुमार राम, उस पर हाईकोर्ट से उसका पीआई जो केस हुआ था उसमें केस खोलने का डायरेक्शन हो गया है हाईकोर्ट से, और उम्मीद है कि एसपी साहब उसमें रिकमेंड कर दिए और उसमें एफआईआर भी होगा, जेल जाने का उसका तैयारी होने की संभावना हो गया है। हालांकि थोड़ा सा कष्ट होता है सच्चाई की आवाज उठाने वास्ते, लेकिन सच्चाई का जीत होता है, थोड़ा देर होता है। ठीक है, धन्यवाद आपका। विशाल कुमार जी भी बहुत समय से कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और वो अपना अनुभव बता रहे थे। कुछ आरटीआई से महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने फिर निकाली थी इसी कार्यक्रम से प्रेरणा पा करके, और यहाँ से सहयोग प्रदान हुआ था। माननीय शैलेश जी, माननीय आदिदीप जी, माननीय राहुल जी और जितने हमारे और सब साथी गण और स्पीकर से जो आए उन्होंने अपनी जानकारी दी, तो उनको काफी लाभ हुआ। वही बता रहे हैं कि संबंधित जो दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर कार्यवाही होने वाली है, तो बहुत खुशी की बात है। इसी तरह से सुशासन बढ़े और मतलब गलत काम करने वालों को सजा मिले। इंजीनियर पवन कांत मेश्राम, क्या आपका प्रश्न है इंजीनियर साहब? जय हिंद। मेरा प्रश्न नहीं है, मैं एक अनुभव शेयर करना चाह रहा हूं जो आर्टिकल 9 के तहत कॉपीराइट के तहत आता है। अनुभव ये है कि 2019 में एक मैंने आरटीए लगाया था जिसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा सिलेबस को कंप्लीट करने के तहत अध्यापकों के द्वारा डेली डायरी, दैनिक बुक यानी राइट यानी वर्क करते हैं, उसकी मैंने दस्तावेज यानी मांगी थी, जिस तहत यानी सहायक लोक सूचना अधिकारी ने
उस पे जवाब और धारा 9 का उल्लेख करते हुए देने से मना कर दिया गया था। उसके बाद मैंने अपील लगाया, तो अपील के तहत जॉइंट डायरेक्टर यहाँ पे आते हैं, तो वहां पे उन्होंने ये निर्णय दिए कि शासन द्वारा शासकीय कर्मचारी जिस प्रकार से लेक्चर मतलब अध्ययन पढ़ाने के लिए, अध्यापक जो पढ़ाने के लिए जाते हैं वो पूर्णतः तैयार करते हैं, तो उस तक वो कॉपीराइट में नहीं आता है। और इस पे इंटरेस्ट फॉर मतलब बहुत लोगों का, बच्चों का इंटरेस्ट है, और इससे जो पढ़ाने के तरीके और नवाचार का उल्लेख होता है वो कॉपीराइट के तहत नहीं आता है। तो ये मेरा जो एक अनुभव रहा कि कई बार ऐसे हैं कि बैठे हुए अधिकारी भी सही तरीके के निर्णय लेते हैं, तो उस तहत यानी भ्रष्टाचार भी कम हो जाता है। सिलेबस कंप्लीट नहीं करने के तहत वो भ्रष्टाचार उजागर हुआ था, जिस तहत यानी अध्यापक लोग पढ़ाने के लिए एक मार्गदर्शन के तहत एक प्लानिंग करते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में पूरी तरह से सिलेबस को कवर करते हैं, और वही सिलेबस फिर एग्जाम में क्वेश्चन आंसर के तहत बच्चों को पेपर देना पड़ता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपने अपना काफी महत्वपूर्ण अनुभव यहाँ पर शेयर किया पवन कांत जी। और आगे बढ़ें और आगे प्रश्न लेते हैं। हमारे कोई साथी यदि हैं अपनी बात रखना चाहते हैं तो अपने हैंड रेज किए हुए हैं। एक तो शिवा जी हैं, तो शिवा जी अपनी बात रखें। और अन्य जो भी साथी हमारे हैं, 12:30 बजे तक हमारे बीच में माननीय शैलेश सर भी हैं, तो उनसे भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। यदि कोई प्रश्न है तो विशेष तौर पर आप उनसे पूछ सकते हैं। अभी 10 मिनट हमारे बीच में रहेंगे। शिवा जी। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते। जी सर, ये गांधी सर से हमको एक बात पूछनी थी कि हम एक आईईएस ऑफिसर है, वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम उनका सर्विस बुक ले सकते हैं आरटीआई से? मेरे हिसाब से आप ले सकते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से नहीं ले सकते हैं। मेरे हिसाब से कानून में ये क्लियर है। जो मैं तो इसको अलग तरह से देखता हूँ, जो भी सूचना सरकार के पास है वो आपके और मेरे लिए है। जी जी सर। डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। एग्जेम्प्ट है उतना छोड़ के, और इसको मैं एग्जेम्प्ट नहीं मानता हूँ। ये प्राइवेसी का इंट्रूजन नहीं होता है। 81J में उसको डिनाई करने की कोशिश की जाए, और अगर 81J में किसी को डिनाई करना है तो उसको ये भी कहना चाहिए कि मैं ये सूचना सुप्रीम पार्लियामेंट को नहीं दूंगा। तो मैं बिना 81J के तहत मना करना गैर कानूनी है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं शुरू से ही जैसे आरटीआई लगाने के बाद वो डिनाई कर देंगे, तो मैं फिर एफआईआर की तरफ जाके उनको मतलब ज्यादा फोर्स करने की कोशिश कर सकता हूँ, मतलब क्योंकि वो डिनाई करेंगे। आप ये आर्ग्यू कीजिए, चाहे तो मुझे ईमेल भेजिए, मैं आपको मेरा आर्ग्यूमेंट भेजता हूँ कि 81J में क्यों नहीं कवर होता है। जी मगर जी वो मानना मुश्किल है, क्योंकि जी सुप्रीम सर। कोर्ट नहीं मानता है। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन 81J का गैर कानूनी है, कानून से संबंधित नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़ें और अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारे बीच में और भी कुछ साथी हैं जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, तो कृपया आप लोग हाथ उठाएं। गोरडे जी, आपका क्या प्रश्न है? और भी दूसरे साथी हैं, आप भी अपना प्रश्न रख सकते हैं। आप लोग हैंड रेज का ऑप्शन चुनिए जिस तरह से होता है। बताइए गोरडे जी। हाँ सर, some RTI applicants, they use RTI very effectively. Can we demand their RTI application under RTI Act? According to me, yes, you can. But can they say it is a copyright of theirs, we cannot give? That way, anything that you write is a copyright. If you go by that logic, एक ऑर्डर लिखा, कुछ भी लिखा, वो कॉपीराइट हो जाता है। हाँ, किसी का फाइनेंशियल नुकसान होना चाहिए उससे, और किसी को कमर्शियल फायदा होना चाहिए, तब वो कॉपीराइट की बात आती है। ओके, थैंक यू। ठीक है, जयपाल सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, राजगढ़ खींची से हैं जयपाल सिंह जी। जी आदरणीय सभी सम्मानियों को प्रणाम। मेरा ऐसा है तो क्योंकि जब भी हम जानकारी मांगते व्यापक लोक हित के लिए, मैंने एक जानकारी मांगी थी और अनेक मांगी थी, लेकिन क्या वही जानकारी छुपाते हैं जिसमें भ्रष्टाचार अधिक?
ऑर्डर कम से कम जो है 80 से 90 लाख रुपए का दुरुपयोग किया गया। वही बिल जो अनुबंध के तहत जो कंपनी ने कार्य किया उसने डाला और वही बिल नगर ने लगा के दिया। 5 वर्ष की समयावधि में जो कंपनी जो आवाज नहीं आ रही क्या सर? तो समयावधि में जो यूज करना था तो एक ही जगह के एक ही चीज के डबल बिल लगा दिए गए। जब वो जानकारी मांगी तो उस बिल को छुपा दिया गया। तो वापिस मैं अपील में तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन ये जो ऐसे जो जानकारी छुपाते जो व्यापक लोक हित की होती है या भ्रष्टाचार से संबंधित होती है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं विशेष सर, जिससे ये जानकारी सहज भाव से मिल जाए सर? शैलेश सर, आवाज बहुत कट रही थी, मैं सुन नहीं पाया। वो थोड़ा सा दिक्कत हमें लगता है कि आनंददीप सर का कहीं ना कहीं वो नॉइज कैच करता है। मैं ये फील कर रहा हूँ। तो जब नॉइज कैच करता है तो इनका कोलाइड हो जाता है दोनों का। तो इस तरह से थोड़ा सा, इसलिए मैंने सर आपको म्यूट कर दिया था आनंददीप सर को। तो उस समय तो इनकी आवाज साफ आई थी, लेकिन पहले इन्होंने क्या बोला वो थोड़ा सा, हाँ एक बार जयपाल जी शॉर्ट में फिर बता दीजिए। सर मेरा ये था कि एक विषय के डबल जैसे नल जल योजना चल रही है हमारे राजगढ़ जिले में, सुठालिया नगर पालिका ने भी वही बिल लगाए और जो अनुबंध के तहत 5 वर्ष तक ब्लीचिंग और जो भी पानी साफ शुद्ध करने के लिए होता है वो भी अनुबंध के तहत उन्होंने भी उपयोग किए, जो कि नगर पालिका नहीं लगने थे। और जब वो बिल मांगते हैं कंपनी के तो वो भी नहीं देते। तो ये छुपाई जाती है जो व्यापक लोक हित की जानकारी होती है। तो उसमें हम सहज भाव से या सरलतम से किस प्रकार से इनसे हम लड़ करके भ्रष्टाचार को जल्द से जल्द उजागर कर सके। जयपाल जी, सूचना लेने के लिए आपको कोई लोकहित बताने की जरूरत नहीं है। लोकहित बताने की जरूरत तब है जब कोई एग्जम्पशन लागू होता है। अगर कोई एग्जम्पशन नहीं लागू होता है तो कोई लोकहित बताने की जरूरत नहीं है। और जो आप कह रहे हैं बिल्स की कॉपीज आपको मिलनी चाहिए, उसको एग्जम्पशन कौन सा क्लेम कर रहे हैं? लोकहित एस्टेब्लिश करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। जी 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 ठीक है, आगे ले लेते हैं सुनील जी। सुनील खंडेलवाल झारखंड से हैं। सुनील खंडेलवाल जी, आपका क्या प्रश्न है? सुनील जी, आनंददीप सर कुछ और आप ऐड करना चाह रहे हैं? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखें। कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सुझाव आया है, नाम रमाकांत गौरव जी ने दिया है। वीरेंद्र ठक्कर जी से को उन्होंने खास तौर पर फोकस किया है कि अगला एक वेबिनार में सुखाचार अधिनियम, सुविधा का अधिकार अधिनियम पे भी चर्चा रखी जाए। अच्छा विषय है, हम लोगों के उपयोगी होगा। अगला कार्यक्रम बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें हम रखेंगे। इस पर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है ये ईजमेंट्स एक्ट। तो ये जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसी वक्त ये भी कानून पास हुआ था 19वीं सदी में। तो इस पर भी एक रखा जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। तो इस पर कभी इसका इंग्लिश में क्या नाम है ठक्कर साहब? सुखाचार ईजमेंट्स मतलब इजीनेस। हाँ, ईजमेंट्स एक्ट बोलते हैं इसको। तो ये एक तरह का प्रॉपर्टी राइट है। और सुखाचार में ये होता है कि जैसे किसी का घर ऊपर है और किसी का घर नीचे है, तो नीचे जिसका घर है वो अपना घर गिरा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाला उसी के आधार पे टिका हुआ है। फिर जैसे पैसेज है, विंडो है, या कोई स्टेयर केस है, तो ये जो चीजें है कि प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, बट ये कि किसी का कुआं, किसी का रास्ता, किसी का कोई चीज वहां से जाती है और लोग उसको आमतौर पे यूज कर रहे हैं। सो इवन इफ द प्रॉपर्टी टाइटल इज नॉट विद देम, बट दे कैन यूज इट, और उस पर दूसरा कोई रोक नहीं लगा सकता है गलत तरीके से। अदरवाइज फिर मामला जो है लैंड डिस्प्यूट में जाता है और तहसीलदार की अदालत में वो केस कर सकते हैं ये सुखाचार ईजमेंट्स एक्ट के अंतर्गत। तो ये बहुत पुराना कानून है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लॉ है। तो जहां जहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसी डिस्प्यूट होते हैं, तो वहां पर ये सुखाचार या इसको यूज किया जा सकता है कि वो प्रॉपर्टी किसी की नहीं होती है, बट इट इज कॉमन टू ऑल। तो क्योंकि आने जाने का सभी का राइट वहां पे होता है कि जहाँ पर जैसे बालकनी है, स्टेयर केस है, या पैसेज है, या फिर जो घरों के बीच में जितनी जगह रखनी चाहिए ताकि हवा, पानी, प्रकाश वगैरह आता रहे, तो ये इस तरह का किसी को ब्लॉकेज या कोई करता है तो उसमें फिर उस पे सिविल कोर्ट में या रेवेन्यू कोर्ट में केस करके इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर भी लाया जा सकता है। तो इस तरह के प्रावधान उसमें है। तो करेंगे इसको डिटेल में कवरेज कभी। सुनील जी, आपका क्या प्रश्न है? जी, मेरा प्रश्न गांधी सर से है
और ये मेरी समस्या नहीं बल्कि बहुत से लोगों की समस्या है कि जब भी हम कोई सूचना मांगते हैं विशेषकर केंद्रीय विभागों से, तो वेबसाइट का हवाला दे करके और सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती है। जब उनकी वेबसाइट पर विजिट किया जाता है तो वो सूचनाएं रहती नहीं। तो आरटीआई लगाते समय ही मैं यह लिख देता हूं कि कृपया मुझे वेबसाइट देखने के लिए ना कहा जाए और मुझे जो भी सूचनाएं हैं उनकी प्रमाणित प्रति दी जाए। इस संबंध में गांधी सर का एक 2000 का आदेश भी था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के 90% लोग कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं और एक्ट में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। पब्लिक डोमेन में है वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आवेदक चाहे तो 2 रुपये शुल्क दे करके हार्ड कॉपी की भी प्रमाणित प्रति ले सकता है। इस आदेश का रेफरेंस भी मैं जब द्वितीय अपील की सुनवाई श्रीमती सरोज पुनहानी जी के समक्ष हुई थी तो उन्होंने आदेश को ही मानने से इनकार कर दिया और बोली कि इस संबंध में बहुत सारे हाईकोर्ट के डिसीजन हैं और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हैं। मैंने कहा कि ये आरटीआई एक्ट में ही प्रावधान नहीं है और आवेदक चाहे तो प्रमाणित प्रति ले सकता है, तो इनको उपलब्ध कराने में क्या असुविधा है। प्लस जो वो वेबसाइट देखने के लिए कहते हैं उस वेबसाइट पर वो स्पेसिफिक सूचनाएं उपलब्ध नहीं है, तो कैसे आप सूचनाएं दिए। तो गांधी सर से निवेदन होगा इसके मैं आपसे कंप्लीटली सहमत हूँ। मेरे हिसाब से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कमीशंस और कोर्ट्स उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। कानून को न देखते अपनी अपनी मर्जी से क्या होना चाहिए, कानून कैसा होना चाहिए ऐसे देख रहे हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और मेरे हिसाब से तो देना चाहिए, मगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी पावर में है उन्हें आरटीआई पसंद नहीं है। पारदर्शिता सबको सबके दूसरे के लिए पसंद है, अपने लिए पसंद नहीं है। इसके बारे में तो मैं भी क्या कहूंगा, तुमको इतना ही कहता हूं कि भाई कानून आप देखिए और कानून के हिसाब से इंटरप्रिटेशन कीजिए, मन मर्जी से मत कीजिए। मगर वो सुनते नहीं है, कानूनन वो चीज गलत है। ठीक है सुनील जी, उम्मीद है आपके प्रश्न का समाधान हो गया। कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बस ठीक है। रियलमी 8i से एक कोई है श्रीमान जी, और पहले भी वो कुछ बोलना चाह रहे थे। रियलमी 8i, क्या नाम है आपका? हेलो, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। और आप लोग यदि प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग हैंड रेज का ऑप्शन जरूर चुनिए, क्योंकि हमें मुश्किल होगा कि आप को कैसे हम कॉल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। तो हैंड रेज का आप लोग ऑप्शन चुने। जैसे भी आपके प्रश्न है आप अपनी बात जरूर रखें और सबके आपके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। कुलदीप सिंह जी कुछ और कहना चाह रहे हैं आप क्या? और यहाँ पर शैलेश सर को इजाजत देंगे और वो कार्यक्रम में अब सर 2 मिनट सर, बस 2 मिनट धन्यवाद सर समय देने के लिए आपको। जी सर, अगर पॉसिबल हो तो सर बताइए। सर, अभी जो आपने आईएएस को लेकर निर्णय कहा, सर मैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत से निर्णय पढ़ता हूं, तो उसमें एक चीज ये कही जाती है कि जो आवेदन होता है उसमें कहीं ना कहीं जनहित दिखना चाहिए। तो इसमें अगर मैं 4 लोगों की सर्विस बुक मांग रहा हूँ पहली चीज, या फिर मैं किसी सर्वे के हित के लिए मैं मान लीजिए मैं पत्रकार हूँ और मैं किसी सर्वे के लिए सर्विस बुक की जानकारी मांग रहा हूँ, तो उस संदर्भ में क्या तब भी 8(1) जगह लगा के जानकारी रोकी जा सकती है? कोई अनुभव इस विषय में? सुप्रीम कोर्ट के आधे डजन के ऊपर निर्णय मैंने पढ़े हैं जिसमें 8(1) का एग्जम्पशन क्लेम किया गया है और 8(1) को पूरा कोर्ट ही नहीं किया गया। 8(1) का जो पूरा सबसेक्शन है विद द प्रोवाइजो, वो कोर्ट करके उसके साथ डील करने वाला एक भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, नॉट वन। तो मैं क्या कहूं, मेरे हिसाब से डील करें वो पूरे सेक्शन से और फिर कहें कि हमारे हिसाब से इसका मतलब ये निकलता है, फिर तो ठीक है। ये मुझे तो बड़ी आपदा लगती है कि आप कानून में बनाया हुआ सेक्शन, सुप्रीम कोर्ट को मेरे हिसाब से ये अधिकार है कि वो बोल सके कि अल्ट्रा वायर्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है।
मगर मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो कानून को आधा कोट करके अपने हिसाब से चलाए। वो ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन को बार कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से कानून ने कहा ही नहीं है ऐसा। कानून ने उसके लिए काफी लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया, जिसका कॉग्निजेंस ही नहीं लिया जा रहा है अपने कोर्ट्स में। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि कानून वो है जो पार्लियामेंट ने बनाया, वो अच्छा है बुरा है, वो कानून को से सबको चलना चाहिए। और अपनी कोर्ट्स आरटीआई के बारे में ऐसा नहीं मानती है। और अगर जनहित एस्टैब्लिश करना होगा तो कल को मुझे बोलने के लिए जनहित एस्टैब्लिश करना होगा, पब्लिश करने के लिए जनहित एस्टैब्लिश करना होगा, तो आर्टिकल 91 में तीनों है। इसलिए मैं असहमत हूँ। उसके अलावा तो मैं क्या कहूँ, मैं अपनी बात सबको समझाता रहता हूँ कि कानून क्या कहता है, ये हिसाब से आप देखिए। और कुछ कमिश्नर्स, कुछ पीआईओ कानून के हिसाब से भी सूचना देते हैं, मगर वो कम होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है, मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। देखिए जनहित शब्द 3 जगह पर आया है केवल, 81D, 81E और 81J। ये 3 छोड़कर, क्योंकि धारा 6(2) है, 6(2) में ये लिखा है कि सूचना प्राप्त करने वाले को अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अलावा और कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है, और कोई इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं। तो वो 6(2) जो है, इसके मुताबिक सूचना क्यों चाहिए, इसका कारण देने के लिए कोई भी एप्लीकेंट को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके 3 अपवाद कोर्टों ने जो माने हैं वो 81D, 81E और 81J है कि यदि पीआईओ अपने लेटर में लिखता है कि 81D, 81E या 81J में सूचना नहीं दी जा सकती, तो फिर ऐसे मामले में एपेलेट लेवल पर उसमें जनहित साबित करना पड़ सकता है। और वहां पर जो जनहित का जो पावर है, इसमें 2 अलग-अलग प्रावधान है। डी और ई में जो इसमें ये कहा गया है कि जो इंफॉर्मेशन है अनलेस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और E1 में भी यही लिखा हुआ है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है is satisfied that larger public interest warrant disclosure of such information। तो डी और ई में जो पावर है डिस्क्लोजर का, मतलब एग्जेम्पशन के एक्सेप्शन का, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो है। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो 2E में, सेक्शन 2E में डिफाइंड है। जहां तक 81J की बात है, तो 81J में जो अधिकार है ये पीआईओ को है, इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। इसमें लिखा है कि जो जहां पर ये लिखा जाता है पीआईओ और द, मतलब सीपीआईओ और एसपीआईओ और द एपेलेट अथॉरिटी, मतलब यहाँ पर जो अधिकार है 81J में, ये सीपीआईओ या एसपीआईओ या पब्लिक अथॉरिटी है या जो डिपार्टमेंटल एपेलेट अथॉरिटी है, उनको ये अधिकार है कि वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या 2E की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 अलग अलग प्रावधान है जहां पर जनहित की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज ये सेक्शन यदि कोर्ट नहीं किए गए हैं तो फिर जनहित वगैरह का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि 6(2) के मुताबिक कोई भी कारण बताने की आवश्यकता नहीं है कि अमुक सूचना क्यों चाहिए। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, रियलमी 8i से कुछ आप पूछना चाह रहे थे? रमाकांत कौरव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ रमाकांत जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी सदर नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार। वीरेंद्र सर से एक सवाल पूछना चाह रहा था। जैसे मेरे मकान बना रहा हूँ मैं, वो सुखाधिकार अधिनियम से संबंधित है। तो मेरा मकान का काम चल रहा है, पीछे तरफ कॉलोनी है, खाली एरिया है, सर्विस एरिया है कॉलोनी का, तो उधर खिड़की बना सकता हूँ कि नहीं मैं? तो कॉलोनी के जो कॉलोनाइजर हैं वो थोड़ा सा वो मना कर रहे हैं कि इस तरफ खिड़की ना रखना, उस तरफ खाली एरिया है, उधर से रोशनी और धूप हवा के लिए क्या खिड़की बनाई जा सकती है? सर्विस एरिया है कॉलोनी। इसमें आपके जो लोकल अथॉरिटी है, जो भी आपका लोकल बॉडी है, कि जो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद या सिटी का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इसमें आता है, तो उनके कुछ फीट खाली रखने के कुछ नियम होते हैं, जिसको नजूल लैंड या कुछ कहते हैं, कि जहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, इवन दो इट इज से डज नॉट बिलोंग टू एनीबॉडी, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट फ्यूचर में उसको अक्वायर कर सकती है। तो यदि ऐसा कोई प्रावधान है कि आपको अमुक इतने फुट की खाली रखना जरूरी है, तो फिर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अदरवाइज फिर आप जो लोकल अथॉरिटी है उनसे परमिशन लेकर फिर आप उसमें कर सकते हैं। नहीं सर, मैं खिड़की का पूछ रहा हूँ, खिड़की निकाल सकता हूँ अपने घर में? हाँ नहीं, अपने घर में यदि प्रॉपर्टी आपकी है तब तो कर सकते हैं, लेकिन किसी और के जो राइट्स है वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए। मान लो कोई दूसरा केस कर देता है कि आपने ये इसे हमारे उसमें बाधा पहुंच रही है, तो फिर वो इसमें एक्ट में वो आपके खिलाफ एक्शन ला सकता है कोर्ट में।
तो किसी और को उससे कोई मतलब हानि या असुविधा नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान नहीं रखना सर, पड़ेगा। वो क्या वो पैक करा सकते हैं क्या मेरी खिड़की को, ये जानना चाह रहा था। मैं अपनी जगह में अपने घर में निकाल रहा हूँ, उससे लगी हुई दूसरे की कॉलोनी है पीछे की तरफ, और कॉलोनी का सर्विस एरिया है, खाली रहता है जो सर्विस एरिया, जिसमें ये ट्रीटमेंट प्लांट लगता है और ये ट्रांसफार्मर लगता है, उसके लिए वो सर्विस एरिया खाली छोड़ा जाता है, वो नोटिफाई है सर्विस एरिया। उस तरफ खिड़की बनाना चाह रहा था मैं, तो वो मना ही कर रहे हैं कि आप इधर खिड़की ना रखें। मैं अपनी प्रॉपर्टी में बना रहा हूँ, अपनी दीवार पे बना रहा हूँ, अपने कमरे में बना रहा हूँ। अपनी प्रॉपर्टी को बना रहे, बात सही है, फिर भी उसमें देखना चाहिए कि कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उसका किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपकी लोकल अथॉरिटी है, उसमें मान लो इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप अमुक फीट की जगह या अमुक जो गैप है दो बिल्डिंग के बीच में या इतना कुछ रखेंगे या वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते, तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है गवर्नमेंट भी एक्शन लेके बाद में उस चीज को ये हटा सकती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी जी, ओके सर, थैंक यू। इसलिए हम जो प्लान वगैरह देते हैं ना, जो नक्शे वगैरह देते हैं, तो जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, अलग अलग सिटी की है ना, जैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है या मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो हम जो नक्शे पास कराते हैं वो उसका कारण ये होता है कि गवर्नमेंट उसको रिकॉर्ड में रखती है और ये भी देखती है कि कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है इसका कोई वायोलेशन ना हो। जैसे कि हम यहाँ पर नहीं सर, उसमें विंडो का तो होता नहीं है सर, विंडो तो दे सकते हैं अपनी जगह में, और वो बंद भी करा सकते हैं, वो उनकी जगह में दीवार खड़ी कर सकते हैं चाहे तो। हाँ, लेकिन यही मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे को असुविधा नहीं होनी चाहिए। यदि किसी को असुविधा होती है या उसके लाइट या रोशनी पर, मतलब पानी पर या बिजली पर या रोशनी पर कोई मतलब ये आ सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, या उसके पैसेज राइट्स पर कोई एनक्रोचमेंट होता है, तो फिर वो उसमें लीगल एक्शन ला सकता है कि आप सुखाधिकार के तहत ये आप नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारा राइट ब्लॉक हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यही जानना चाह रहा था कि मैं मेरी ये सुविधा है कि मुझे लाइट मिले, हवा मिले, इसलिए मैं वो आप कर सकते हैं, अपने लिए आप कर सकते हैं, दूसरों के राइट का उल्लंघन ना हो ये आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे लोग खिड़की बनाते हैं, अब खिड़की खुलती बाहर की तरफ है, क्या आप खिड़की अंदर की तरफ खोल रहे हैं या आप खिड़की बाहर अंदर की तरफ रहेगी, अंदर की तरफ रहेगी वो तो वो फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बाहर की तरफ खुल रही है तो फिर वो बाहर के एरिया को ब्लॉक करेंगे, यदि अंदर की तरफ खुल रही है तब तो फिर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है ना। जी तो जी, ये बस अंदर की तरफ खुलने वाली कर रहे हैं कि बाहर की तरफ खुलने वाली, ये भी इसमें एक रिलेवेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये अंदर की तरफ वाली है सर, लेकिन वो मना कर रहे हैं कि आप इस तरफ मत रखें, हमारी कॉलोनी है इधर, उनका कहना ये है। हाँ, तो कोई ऐसे कॉलोनी के कोई रूल्स या ऐसे कोई चीज है या कहीं लिखी हुई है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कोई चीज बात कहीं लिखी हुई है तो फिर उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट में अमाउंट टू इलीगल एक्शन। सर समापन हो रहा है। मैं वीरेंद्र सर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंटरप्ट करूंगा, और आत्मदीप जी भी कहीं आवश्यक काम से जाने वाले हैं तो वो उन्होंने मैसेज किया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आत्मदीप सर, हमेशा ही समय देते हैं, अपना महत्वपूर्ण समय उन्होंने दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यदि आप जुड़े रहना चाह रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छा है, और यदि जाना आवश्यक है तो प्लीज। जी धन्यवाद आप सबको। और आज के वेबिनार में बहुत ही अच्छी चर्चा हुई कॉपीराइट और दूसरे बिंदुओं पे, सबके लिए अच्छा उपयोगी साबित होगा। और अगले सेमिनार के लिए दो बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, उन पे भी हम सबको गौर करना चाहिए। सुखाधिकार अधिनियम वाला जो रमाकांत जी ने दिया है, एक और सुझाव था। धन्यवाद सभी को, फिर मिलते हैं अगले रविवार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। तो आगे बढ़ते हैं। और कुलदीप जी, हाँ आप कुछ बोल रहे थे, आप क्या पूछना चाहते हैं? वीरेंद्र सर आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, मैंने एक लिंक शेयर की हुई है सर, ये सुप्रीम कोर्ट की मॉडल लाइव स्ट्रीमिंग को लेके मॉडल कोर्ट की एक रूलिंग है ना, और मैंने इसका अध्ययन किया हुआ है सर। आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन था, क्योंकि मैं फाइनल एक आवेदन ड्राफ्ट करने जा रहा हूँ और काफी कुछ अध्ययन मेरा हो चुका है, ये लास्ट मेरा स्टेप है। आप अनुभवी हैं सर, कुछ और दिक्कतें तो नहीं आएंगी। इसको लेके मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ सर, ये जो लिंक मैंने दी हुई है इसमें रूलिंग की पीडीएफ डली हुई है सुप्रीम कोर्ट की, कि क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग को लेके। तो और इसको लेके सर मैं आपसे ये चाह रहा हूँ सर, आपकी तरफ से और कोई सुझाव या आपत्ति या कोई मेरे लिए हो जो मैं ड्राफ्ट करते समय ध्यान रखूँ, ताकि मैं सर फाइनली उसको मैं ड्राफ्ट कर दूँ एक कॉमन एप्लीकेशन को। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये केवल मॉडल रूल्स है। मॉडल का अर्थ ये होता है कि पहली बात ये कि इसमें फेरबदल किया जा सकता है सुविधा अनुसार। तो अडॉप्ट करने वाली जो भी अथॉरिटीज है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या जो यह डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी हो या दूसरे स्पेशल कोर्ट्स हो
तो सभी इसको अपने अपने ढंग से बदल सकते हैं, क्योंकि मॉडल का मतलब केवल उन्होंने एक आदर्श वो एक दे दिया है, इसको लीगली फॉलो करना या मैंडेटरीनेस या इस टाइप का कोई कंपल्शन इसमें नहीं होता है। तो जिसको जैसा चाहिए उस तरह से वो कर सकते हैं, और इससे कम ज्यादा भी मतलब किसी को रिस्ट्रिक्शन करना है तो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, इससे ज्यादा लिबर्टी देना है तो कोई लिबर्टी भी दे सकता है। बट ये एक मॉडल चीज है कि जो फॉलो की जानी चाहिए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट और ये जो है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा पावर्स नहीं होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की जहां तक बात है। तो इसलिए उन्होंने ये दिए है और इसका पालन किया जाना चाहिए। और बाकी जगह पर आप केवल जो अथॉरिटीज है वो जुडिशियल अथॉरिटीज को या आप सीधा प्रत्यावेदन दे सकते हैं कि इस तरह का लाइव स्ट्रीमिंग उन्होंने किया जाए, है ना। और लाइव स्ट्रीमिंग यदि वो कर लेते हैं और ये बचत होती है, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और करोड़ों रुपए खर्च करके ऑलरेडी सरकार ने पैंडेमिक के दौरान ये किया हुआ है कई जगह पर, और अब इसमें बहुत ज्यादा मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, केवल जो लीगल या इस तरह के प्रॉब्लम्स जहाँ पर है तो कंसर्न जो CIC है या जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, तो वो लोग अपने अपने जगह पर इसको लागू कर सकते हैं, तो उसमें आप उनको प्रत्यावेदन कर सकते हैं। बाकी लीगली इसमें कंपल्शन किसी को नहीं किया जा सकता। ये हाई कोर्ट में जो है ना, ये इसमें तो 225 और 227 भी आपने लिखा हुआ है ना, ये जो मॉडल रूल्स आपने लिखा है। जी 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 तो जी सर, जी हाँ, सर। तो इसमें ये केवल इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर आर्टिकल 225 और रिलेवेंट स्टैट्यूट वेयर एप्लीकेबल एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हाई कोर्ट के जो रूल्स है इसका एप्लीकेशन दो जगह पर होता है, एक हाई कोर्ट के स्वयं अपने लिए होता है, दूसरा उनका रूल जो एप्लीकेबिलिटी है वो जुडिशियरी के लिए होता है जो 227 में होता है। तो वो दोनों के लिए वो रूल बनाने का पावर उनको होता है, और उसके तहत इन्होंने मॉडल रूल्स बनाए हुए हैं। लेकिन ये मॉडल रूल्स ही है, तो इसलिए मतलब इसका जो मतलब एक तरह का बाइंडिंग नेचर नहीं होता है, और थोड़ा बहुत इसमें फेर बदल करके अपने अपने अदालत में सभी जजेस या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है वो इसको लागू कर सकते हैं। इस तरह का ये प्रावधान है। जी सर। सर फाइनली मैं बस इसमें ये कंक्लूड करता हूँ कि मतलब हमें परमिशन मिल सकती है, मतलब मुझे संभावनाएं नजर आती हैं, क्योंकि इसमें फाइनली प्राइवेसी वगैरह का जैसे फैक्टर होता है, और ये सब जो चीजें होती हैं कि प्राइवेसी वाले जो मेन फैक्टर होता है वो मुझे लगता है कि इस PDF के थ्रू कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो जाता है। हाँ नहीं, वो लाइव स्ट्रीमिंग अलग चीज है, लेकिन उसमें आप ये ध्यान रखिए, जैसे IPC में रेप पीड़ित महिला का इन कैमरा ट्रायल है। जी, इन कैमरा लैटिन वर्ड है, इसका कैमरा से कोई संबंध नहीं है। इन कैमरा का मतलब है कि जो व्यक्ति है उससे जो संबंधित रिश्तेदार या जो कोर्ट के गवाह या आरोपी जो है केवल वही लोग रहे, प्रेस वालों को एंट्री बैन रहती है, अन्य लोग होते हैं वो मतलब उसमें एंट्री नहीं कर सकते। जैसे दामिनी फिल्म में दिखाया कि अदालत खचाखच भरी हुई है, ऐसे रेप के ट्रायल नहीं होते आजकल। तो जब से ये प्रावधान बना हुआ है तो जहां जहां पर प्राइवेसी जरूरी है तो वहां पर वो प्रावधान बिल्कुल लागू होते हैं, और कई केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पर ये प्रावधान लागू होते हैं तो प्राइवेसी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि दीज आर मॉडल रूल्स, इसका बाइंडिंग नेचर नहीं है, ये केवल एक आदर्श वो दिए है कि इसको चाहे तो फेर बदल करके कम ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ऐड करके या इसमें घटाकर अपनी अपनी अदालत में जो कंसर्न चीफ जस्टिस या प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो लागू कर सकते हैं। ये इसका इम्प्लीकेशन है। जी सर। ठीक है, प्रकाश जी यहाँ पर एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन रखे थे। प्रकाश जी आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। तो जमीन वमीन से रिलेटेड आपका मामला था। प्रकाश, क्या है इनका प्रश्न? बीरेन जी चैट बॉक्स में इनका प्रकाश जी का एक प्रश्न है, इसको देख करके थोड़ा सा आप जवाब दीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने कोई बौद्ध विहार कॉलोनी बनाने का, हाँ ये दलित हैं ऐसा कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, यस, इन्होंने ये लिखा है, सभी मान्यवरों को नमस्कार, मैं महाराष्ट्र से हूँ महोदय। मेरी समस्या है कि मैं दलित समाज हूँ, गांव में हमारे समाज की अलग स्मशान भूमि 3 पीढ़ियों से है, लेकिन अभी उस पर जनरल के एक व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है। तो इस मामले में कहाँ कंप्लेन करें कि वह जगह हमें वापस मिले, उस जगह पर हमें बौद्ध विहार बनाना है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ये जो आपके स्टेट का जो SC कमीशन होगा ना, तो आप वो मामला SC कमीशन में ले जा सकते हैं, और SC कमीशन उसमें ये कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है ना, क्योंकि अतिक्रमण है तो ये सिविल ट्रेसपास या इंक्रोचमेंट वाला मामला है, तो ये लैंड डिस्प्यूट से भी संबंधित हो सकता है। तो ऐसे में आप उसमें कर सकते हैं। दूसरा जो रेमेडी है वो आपके पास क्रिमिनल रेमेडी हो सकता है, वो एट्रोसिटीज एक्ट है, कि वो जमीन को कब्जे में कैदी कर लिया है किसी ने अपने, या उसको अपने नाम से लिखा लिया है, हासिल कर लिया है, उसका रिकॉर्ड बना लिया अपने नाम से, तब फिर हो सकता है कि वो मामला एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में आए। तो फिर आप उसमें जो मैजिस्ट्रियल सेशन कोर्ट, क्योंकि सेशन ट्रायल इसमें चलता है, जो हाईएस्ट टाइप का ट्रायल है,
क्योंकि मैक्सिमम सजा का प्रावधान है, तो फिर उसमें क्रिमिनल मामले में आप ले आ सकते हैं। तो अभी देखिए कि ये मामला सिविल है या क्रिमिनल है, और उसको एससी आयोग या फिर जो सेशंस कोर्ट है उसमें आप ये मामले को उठा सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया। अपने स्तर पर ये प्रयास कर सकते हैं। और हमारे बीच में कोई अन्य साथी हैं, हैंड रेज किए हुए कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। एक और महोदय हैं जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, लेकिन उनका कुछ अस्पष्ट नाम नहीं दिख रहा है, यूजर आईडी वगैरह पता नहीं क्या तो बता रहा है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात पूछ सकते हैं। ब्रिजेश विश्वकर्मा जी हैं जिन्होंने अपना हैंड रेज किया हुआ है। ब्रिजेश विश्वकर्मा जी क्या पूछना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ नरेश कुमार जी, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं प्लीज? हाँ जी सर, डेफिनेट सर। मैंने एक अंडर सेक्शन 7(1) विद इन 48 आवर के लिए लाइफ एंड लिबर्टी के लिए एक एप्लीकेशन की थी, तो उसका कोई जवाब नहीं आया सर 48 आवर के अंदर, और उसको 30 डेज भी हो गए, एक रिमाइंडर भी दे दिया। जी तो उसके लिए अब आगे हाँ जी, इसमें फर्स्ट अपील का अधिकार बन गया आपको, फर्स्ट अपील आप कर सकते हैं। हाँ, तो फर्स्ट अपील में अब मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई आप ना तो 48 आवर के अंदर जवाब दिया और ना ही आपने सिंपल एप्लीकेशन का 30 डेज में दिया, तो दोनों टाइम क्रॉस हो चुके हैं। तो ये मैं मतलब रिक्वेस्ट फर्स्ट अपील राइज के सामने कर सकता हूँ। हाँ, वो फर्स्ट अपील आप कर सकते हो, उसमें वो आप कर दीजिए। और अब मैं फिर फर्स्ट अपील में कितने समय तक स्टे करूँ मैं उनका? भाई देखिए, यदि मामला वाकई लाइफ या लिबर्टी से संबंधित है तो आपका 48 घंटे के बाद अपील का अधिकार बन जाता है। और यदि आप उसमें यदि 30 दिन या 45 दिन रुकना चाहते हैं, क्योंकि प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास फिर 45 दिन टाइम होता है, तो फिर सूचना आयोग भी ये मानता है कि आपको अर्जेंसी नहीं है, तो अपील का जो अधिकार है वो आपका 48 घंटे बाद या 48 + 48 96 घंटे के बाद बन जाता है, यदि वाकई लाइफ या लिबर्टी से संबंधित हो तो, ठीक है ना। और अदरवाइज आप जो नॉर्मल ड्यूरेशन है उसमें वैसे पीआईओ को भी यदि 48 घंटे में जवाब नहीं देना चाहिए तो भी पहला कम्युनिकेशन कर देना चाहिए कि आपका जो प्रकरण है ये जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, अतः जो 7(1) में नॉर्मल अवधि है 30 दिन, इसके अंतर्गत रिप्लाई दिया जाएगा। इस तरह का कम्युनिकेशन उसको करना चाहिए, और नहीं भी किया है तब भी वो 30 दिन है वो लिमिट तो लागू होती ही है ना। तो वो चीज आप उसमें ये कर सकते हैं, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील में करके, और उसमें मतलब विलम्ब होता है तो फिर आप उसमें ये कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि सूचना आपको दिलवाई जाए और विलम्ब के लिए जो है उसको ये अर्थदंड लगाया जाए, ये मांग आप कर सकते हैं। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है नरेश जी। अधिकार की लड़ाई भ्रष्टाचार का अंत, क्या कौन है भाई साहब? आप भी अपनी बात रख ले। सर क्या बात है, बहुत अच्छी है सर शिवानंद जी। अधिकार की लड़ाई भ्रष्टाचार का अंत एक नाम दिख रहा है, उनको मैंने कॉल किया है। यदि आप भी लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं जो कंप्यूटर में बैठे हुए होंगे, तो मैं पूछ रहा हूँ उनसे कि आप भी अपनी बात पूछ ली। सर जड़ें बहुत लंबी है सर, जड़ें बहुत लंबी है इनकी। तो अब हमें लगता है कि बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए हमें वीरेंद्र जी को और सभी यहाँ पर जो भी हमारे महानुभाव गण आए। हालांकि थोड़े समय के लिए राहुल सिंह जी भी जुड़े थे, लेकिन मैंने बात की, फिर उनसे कॉल किया तो सर ने बताया कि कहीं वो ट्रेवल में थे और थोड़े टाइम के लिए उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन नेटवर्क वगैरह का कुछ दिक्कत आ रहा था, इसलिए फिर वो जुड़ नहीं पाए। संभवतः अगले संडे से वो जुड़ेंगे हमारे लोगों के बीच में रेगुलर और कार्यक्रम में आएंगे। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये रहा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच में सब लोग जुड़े। अब नदीर सर ने भी कहा कि ये जो ईजमेंट एक्ट 1988 है, द इंडियन ईजमेंट एक्ट 1988, इस विषय पर 88 या 82 जो भी है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीरेंद्र जी 1882। हाँ जी, अगले किसी कार्यक्रम में हम लोग इसमें निश्चित तौर पर अगले या नेक्स्ट में चर्चा अवश्य करेंगे। और जो भी सुझाव हुआ करें तो आप लोग थोड़ा सा बता दिया करिए, क्योंकि सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स भी चल रहा है एक तरह से, और बहुत सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, तो इसी में से कहीं कुछ निकाल करके आदमी को एडजस्ट करना पड़ता है। हालांकि हम सोच रहे थे कि मानवाधिकार पर भी एक चर्चा फिर कर ली जाए, और हमारे जो कुछ अतिथिगण है उनको बात किया जाए, तो अगले संडे तक में भी हम प्रयास करेंगे इस विषय पर भी। तो हम एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हालांकि 5 मिनट का टाइम शेष बचा हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि क्वेश्चंस भी नहीं है और काफी मैं एक बात ये कहना चाह रहा था, क्या हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर भी कुछ चर्चाएं कर सकते हैं?
हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर जरूर करेंगे। वीरेंद्र जी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर तो आप बोलेंगे, बोल सकते हैं ना? हाँ, उसमें अलग से एक एपिसोड सेपरेटली रखा जा सकता है, ताकि उसमें भी काफी जो पॉइंट्स है, कई धाराएं है जी ना, बताइए, जो आरटीआई उसमें से ताराचंद संबंधित जी या लोगों से, हाँ ताराचंद जी लोगों से भी उस बात पर एक अलग करनी से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अलग से एक एपिसोड इसमें बिल्कुल रखा जा सकता है, क्योंकि साक्ष्य विधि और उसके जो बेसिक प्रावधान है वो सभी को जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है इनफैक्ट, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है सर कि उसकी जो एक रेंज है वो थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड है, और जहां तक मैं समझ पाया हूँ लोगों की जो फीडबैक मिले हैं कि उसमें प्राइवेसी वगैरह को लेके बहुत ज्यादा तथ्य नहीं दिए हैं। अब वो तो सर ही ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। उसमें भी ये सेक्शन 126 है, जैसे कि जो एडवोकेट के साथ जो कम्युनिकेशन होता है, दूसरे भी कुछ प्राइवेसी से संबंधित है, कुछ प्रावधान है, तो अलग अलग कई चीजें हैं। तो उसमें मतलब इंडियन एविडेंस पर एक्ट पर जो है उसके बेसिक प्रावधान जो है, या एविडेंस के जो बेसिक रूल है, तो उस पर अलग से ही एक जो है एपिसोड पूरा रखा जा सकता है, ताकि उस पर पूरी चर्चा हो सके, है ना। और सभी का जो, चूंकि सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों पर ये समान रूप से लागू होता है, तो इसलिए सिविल कार्रवाई में भी इंडियन एविडेंस एक्ट फॉलो होता है, और क्रिमिनल कार्रवाई में भी इंडियन एविडेंस एक्ट है वो कोर्ट की कार्रवाई पे लागू होता है। तो इसलिए सभी को इसकी बेसिक जानकारी होना जरूरी है कि किसी चीज को मतलब एक ही एडमिसिबल क्या है, उसके बाद फिर रिलेवेंट क्या है, फिर कौन सी चीज साबित करने की आवश्यकता नहीं है, कौन सी चीजें साबित की जा सकती है, कौन सी चीजें है जिसमें प्रिजम्पशन है, कहाँ प्रिजम्पशन है बट इट इज रिब्यूटेबल, मतलब एविडेंस लाके उसको झुठलाया जा सकता है। तो ये सब चीजें जो है एविडेंस एक्ट में होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है, फिर उसमें जो ओनर्स ऑफ प्रूफ किसका है, क्या शिफ्ट होता है, क्या शिफ्ट नहीं होता है, सर्कमस्टांसेस या चेन ऑफ इवेंट्स क्या होता है, प्रूव्ड क्या है, नॉट प्रूव्ड क्या है, डिसप्रूव्ड क्या है, सेक्शन 3। तो ये जो बेसिक प्रावधान है, ये सबको जानकारी होनी बहुत आवश्यक हम उसमें सर पास्ट केसेस की जो भी रिसेंट में आरटीआई के, जैसे हम इंडियन एविडेंस को लेके जो रिसेंट में जिन लोगों ने उपयोग किए हैं केसेस, तो सर उन केस स्टडीज को कैसे अपन रोलिंग में ला सकते हैं, क्योंकि उस इसको लेके अपने पास, उसमें देखिए आरटीआई में आयुक्त महोदय होते हैं हमारे साथ में, है ना, जो हमें बहुत अच्छी जानकारी दे देते हैं, मगर एविडेंस में हम इसके संपर्क में, क्योंकि उसका केस जहां तक लगता है फिर वो कंज्यूमर फोरम में लगता है, तो इसके लिए कंज्यूमर फोरम का जो बॉडी होती है कौन, मतलब तो वो कैसे की जाएगी, मतलब केस स्टडी? जी, इसमें अलग से ही एक एपिसोड रखा जा सकता है, तो उसमें हम ये सब चीजें विस्तार से डिस्कस कर सकते हैं, है ना। जी 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 जी। हाँ, तो उसमें क्योंकि इसमें सेक्शन 74 है, सेक्शन 76 है, और ये कंज्यूमर फोरम का इसमें पावर है या नहीं है, या कोई इसके रूलिंग्स वगैरह या किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो, तो फिर उस पर, क्योंकि इसमें अधिकतर लोगों के अपने एक्सपीरियंस ही है जो मैं अब तक जिनके इंटरेक्शन में आया हूँ, मेरे पास लेकिन लगभग सुप्रीम कोर्ट या 5 हाई कोर्ट के जो केस लॉ है वो मुझे इसमें डिसिसिव केस लॉ ऐसे मिल नहीं सके अब तक। मेरे पास फोरम के लगभग 5 डिसीजन है सर, मैं और मतलब हाई कोर्ट के मैंने हाँ, तो डिसीजन सर्च करने वो की शेयर कोशिश कर किया सकते था, हैं, प्राइवेट चैट में भी आप वो वो शेयर कर सकते हैं जी ना। जी वो मुझे मेरा मिल नंबर में है नहीं आपके है। पास, मेरा नंबर है आपके पास। सर प्लीज से। हाँ, मैं चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, तो उसमें ये कि जो जैसे कंज्यूमर फोरम के भी डिसीजन है ना, तो आप शेयर कर सकते हैं, तो आई विल गो थ्रू इट और मैं देखूंगा उसमें, है ना। जी 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 सर, हाँ, बिल्कुल सर, ताकि हम उस बिल्कुल। पर चर्चा कर सके या सार्थक उस पर हम डिस्कशन कर सके, तो इसलिए आप वो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। ये मैंने जो नंबर शेयर किया ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है ना, जी और जी यही जी फोन सर, नंबर भी है, तो आप इसमें बिल्कुल शेयर कर सकते हैं ना। मैं अपना नाम लेके मैसेज कर दूंगा सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, हाँ जी, यस यस बिल्कुल। तो मैंने ग्रुप में ये शेयर, ये चैट बॉक्स में मैंने जी शेयर जी कर सर, नोट दिया कर लिया है है ना। मैंने। जी सर। ठीक है, फिर हाँ जी, वीरेंद्र हाँ जी। बंद किया जाए कार्यक्रम। और सर मेरा ये भी था, अगर हाँ ये जो हाँ जी, कोरोना के साथ भू अधिग्रहण 2013 जो है, क्योंकि अधिकतर मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी जो डैम बन रहा है, इसमें किसानों को बेशकीमती जमीन के नाम मात्र मुआवजा दिया जा रहा है, और वो भी बहुत विलंब करके दिया जा रहा है। किसान लोग भटक रहे हैं, कोई मध्य प्रदेश में सुनने वाला नहीं, और कहीं नहरें बना दी जाती है तो कोई उपयोग नहीं। जैसे सर रीवा में देख रहे हैं सर, आप कितना कर रहा है वास्तविकता में, मतलब, और उसमें भ्रष्टाचार ये सिर्फ कर किस लिए रहे कि ये भ्रष्टाचार करके सिर्फ अपनी जेब भर ले और अपना जो एजेंडा है वो चला, ये अपना स्वामित्व बना रहा है। हमारे राजगढ़ जिले में ऐसी स्थिति है, पर्याप्त मात्रा में पानी है, लेकिन उसके बावजूद डैम पर बनाया जा रहा है। बनाया भी कैसे सर? एक डैम 15 किलोमीटर ऊपर बना दिया, एक 17 किलोमीटर नीचे बना, पानी की कोई आवश्यकता नहीं। और ऐसी भूमि भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर के राजधानी राजस्थान की जयपुर तक ऐसी उपजाऊ भूमि कहीं भी नहीं है, वो इस डैम में डूब क्षेत्र में जा रही है। कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक
सिटिंग जो एमएलए था उसके कहने पर ये घोषणा कर देता है सीएम, और करने के बाद में काम चालू हो जाता। और अब मैं स्वयं जो जहाँ बैठा हूँ डूब क्षेत्र, मतलब मेरा गाँव भी, लेकिन कोई ऐसा पता नहीं, कोई मुआवजा 5 साल होगा सर, और भटक रहे हैं लोग, कोई सुनने वाला नहीं। वास्तविकता में अगर उस और भी सर ध्यान हो, क्योंकि आपका सभी विषयों पे नॉलेज भी सर वीरेंद्र जी सर का, और तो उनका सर आपका लाभ भी सर हम। हाँ जी जयपाल सिंह जी, इसमें है ना जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 था उसको रिपील करके अब 2013 में नया एक्ट लाया गया है। इसमें भी क्या है कि फिजिबिलिटी स्टडी और पारदर्शिता से संबंधित या सूचना शेयर करने से संबंधित बहुत सारे प्रावधान है। मैंने इस पर काफी लेक्चर्स मैंने पहले लिए हैं जो स्टेट इंजीनियर्स एकेडमी रुड़की है, तो वहां पर मैं अतिथि वक्ता हूँ 2007 से, और पिछले 16 साल से लगातार मुझे वो लोग इनवाइट करते रहे वहां पे हर बैच के ट्रेनिंग के लिए। तो इसमें लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है इसमें 2013 का राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन वाला जो है, तो इस पर हम मतलब अलग से वो रख सकते हैं, और उसमें जो क्या क्या प्रावधान है इसके वो इम्पोर्टेंट प्रावधान मैं शेयर कर सकता हूँ। ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। जयपाल जी थोड़ा सा याद दिलवा दीजिएगा। जी क्योंकि नया एक्ट आ गया है, कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जो पहले अंग्रेजों के जमाने का 1894 का कानून था वो समाप्त हो चुका है और 2013 में नया एक्ट आया है। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, और लैंड एक्विजिशन एक्ट से संबंधित भी हम ये कर सकते हैं कि मुआवजा, और इसमें जो अलग अलग जो पहले स्टडी की जाती है, पब्लिश की जाती है, कंसर्न स्टेक होल्डर से ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाते हैं। उसके बाद फिर इसमें स्पेशल कोर्ट भी इस एक्ट के तहत बने हुए हैं कि यहाँ पर कंप्लेंट की जा सकती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान इसमें है। तो वो पूरा एक्ट है वो हम डिस्कस कर सकते हैं, मेरे इस पर प्रेजेंटेशन भी बने हुए हैं। तो कोई मौका मिले या कोई स्पेशल एपिसोड हो तो उसमें भी हम ये रखेंगे सबकी जानकारी। महत्वपूर्ण है, किसानों से जी जुड़ा हुआ मामला है, बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल बिल्कुल बताया जयपाल जी ने, लोग उसके पीड़ित भी हैं और डूब क्षेत्र में आते हैं, निश्चित तौर पर इस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर अगले संडे को पुनः मिलते हैं और कोई एक नए टॉपिक के साथ में, और इन सभी विषयों पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद।